Please start. Okay. A very good afternoon to all of you. Sabhi ko namaskar and welcome to this orientation program, which is exclusively for the students of the DECE program of January 2025 session. So DECE program is a diploma in early childhood care and education. And this program intends to equip the learners with knowledge and skills needed to work with young children precisely in the up till the age of 6 years. So we all know that the concept of foundational learning is very, very important now that we are going to complete 5 years of we have completed 5 years of the National Education Policy 2020, and foundational learning is one of the focus areas. So this DECE program overlaps the age group that has been given for the foundational learning, which is up to 8 years, from 3 years to 8 years. And the age group which is targeted by this DECE program is 0 to 6 years. So somewhere in those 3 years, this program overlaps the requirements for teachers or workers for the foundational learning program. So with these words, I just wanted to emphasize on the importance of this program, and this is the reason why we have got so much of enrollment in this program, which is more than 1 lakh students for January 2025. So because we have such a huge enrollment in this program, the program is relevant. The Regional Services Division, in coordination with the School of Continuing Education, thought that we must have an orientation program for the students so that they get to know what they are going to do, what they are going to get from this program, and what will be the structure of the program, how they are going to proceed, what will be the academic components, and how they will be able to successfully complete the program by this year end. So with these words, I welcome all of you from the Regional Services Division. As I said, we have in this meeting today with us Professor Rekha Sharma Sen from the School of Continuing Education and the Program Coordinator of the DECE program. And because we have maximum enrollment from the states of Rajasthan and Odisha, we have the academic representatives and my academic colleagues along with the regional directors, Dr. Mamta Bhatia from RC Jaipur. Yeah, am I audible? Okay, Dr. Mamta Bhatia from RC Jaipur, and from Jodhpur we have P. Sharat Chandra, and from RC Bhubaneswar we have Dr. Vimal Nanda and Dr. Santosh Panigrahi. From RC Angul we have Dr. Abhilash Nayak, and from RC Korapat we have Dr. Mishra. So we have the entire team of academics here and the program coordinator of the program. And it's over to you, ma'am. And on behalf of the Regional Services Division, I once again welcome you all. And we may proceed with the program now. I request Professor Rekha Sharma Sen to please give her initial remarks and start with the presentation. Sabhi ko namaskar. A very warm welcome to all the learners. Good afternoon. मेरा प्लान ऐसा है कि मैं हिंदी में बातचीत करूंगी क्योंकि मैं स्लाइड्स भी दिखा रही हूँ और स्लाइड्स जो हैं वो अंग्रेजी में हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों किस्म के लर्नर्स को, जो अंग्रेजी में पुख्ता हैं और जो हिंदी में पुख्ता हैं, दोनों को फायदा हो जाएगा. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बाइलिंगुअली भी देना चाहूंगी. ये सारा सेशन रिकॉर्ड है, आपको बाद में भी अवेलेबल रहेगा, तो आप दोबारा देख सकते हैं इफ यू मिस आउट ऑन समथिंग. मेरी प्रेजेंटेशन में प्लान ये रहेगा कि मैं आपको ब्रीफली इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बताऊं, और मेनली आपको पढ़ाई करने के लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या फॉलो अप करना है और प्रोजेक्ट वर्क कैसा रहेगा, तो उस पर मेरा एम्फोसिस रहेगा. मैं स्लाइड शेयर करते हुए प्रोग्राम के लिए शुरू करती हूँ. 2 सेकेंड दीजिए, स्लाइड शुरू करते हैं. मेरी स्लाइड दिख रही है क्या सभी को? Is the slide visible? कोई feedback दे सकते हैं? It's not visible as of now. No, ma'am. No? It's not visible. Is the slide visible? No, ma'am. Okay, मुझे मैसेज आया है कि I cannot share my screen. Something went wrong. मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ. अब visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इस पॉइंट पे आती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के एम्स क्या हैं। द आइडिया इज कि इस प्रोग्राम को करने के बाद आप जन्म से लेके 6 वर्ष के बच्चों तक कार्य करने के लिए जो आपको नॉलेज, एटीट्यूड्स और स्किल चाहिए वो आप में हो। जन्म से 6 वर्ष हम कह रहे हैं, फोकस हमारा प्रोग्राम में काफी अधिक 3 से 6 वर्ष पे है, जो कि प्री स्कूल ईयर्स जिसको कहा जाता है। और ऐसे जो इस उम्र के बच्चे हैं वो अक्सर नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, प्री स्कूल, प्री प्राइमरी सेक्शन, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इस किस्म के सेंटर्स में जाते हैं। और जाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज शुरू के 3 वर्षों में और 6 वर्ष तक, शुरू के 3 वर्षों में बच्चे का मस्तिष्क का विकास लगभग 75% हो जाता है और 6 वर्ष तक होते होते 90% हो जाता है। इसलिए इस समय बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक ऐसी एनवायरनमेंट मिले जहां उनका संपूर्ण विकास हो सके। और इस प्रोग्राम का पूरा आइडिया यही है कि आपको वो जानकारी मिले और आप ऐसे एक्टिविटीज बच्चों के साथ करने में सक्षम हो जाएं दैट यू कैन फॉस्टर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो प्रोग्राम करने से आप कोई भी चाइल्ड केयर या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो सेटिंग है वहां पे कार्य कर सकते हैं। जैसे आप प्री स्कूल्स, नर्सरी स्कूल्स, किंडरगार्टन्स, डे केयर सेंटर्स या क्रेशेस, इनमें आप कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल एम है। थोड़े स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि क्या पता चलेगा आपको इस प्रोग्राम में। सो बेसिकली आपको बच्चों की जरूरतें और बच्चों के अधिकार ये क्या है ये हम जानेंगे। हम सोचते हैं कि बच्चों की केवल जरूरतें हैं, परंतु बच्चों के अधिकार भी हैं। और बच्चे जिधर रहते हैं उनका जो वहां पे सोशियो कल्चरल सेटिंग है, यानी जो उनका वहां पे सामाजिक सांस्कृतिक जो उनका परिवेश है, उससे उनकी डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। तो सभी बच्चों का विकास पूरे विश्व में एक तरीके से होता है जो कि यूनिवर्सल, सर्वमान्य हम कह सकते हैं, परंतु फिर भी उनका विकास जहां पे वो रहते हैं उससे प्रभावित होता है। तो ये आप समझेंगे। आप ये समझेंगे कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक अलग अलग डोमेन्स में, डेवलपमेंटल डोमेन्स यानी विकास के क्षेत्रों में बच्चों का विकास कैसे होता है, उनका सामाजिक, भावात्मक, मानसिक, शारीरिक, भाषाई, ये विकास कैसे होता है, ये समझना जरूरी है। केवल तभी ही आप बच्चों के साथ कार्य करने के लिए उनको खेल आधारित लर्निंग एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। तो प्ले बेस्ड लर्निंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में। अक्सर हम क्या देख रहे हैं कि आजकल हमारे देश में बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए बहुत स्कूल खुल रहे हैं, परंतु वहां पे हो क्या रहा है, वो बच्चों को बाय एंड लार्ज कॉपी पेंसिल पे काम कराते हैं, रटाने का काम होता है। बच्चे A to Z या क ख ग लिखना या 1 से 100 की गिनती लिखना सीख लेते हैं, परंतु जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनमें सही डेवलप नहीं होते, या उनमें इतना भय हो जाता है स्कूल का, क्योंकि इतना वर्क का ओवरलोड, उनको होमवर्क इत्यादि का इतना ओवरलोड है कि उनको स्कूल में जाने से भय सा लगने लगता है। तो हमारा जो ये कोर्स है इसमें आप ये सीखेंगे कि ऐसे नहीं करना है और इसकी जगह प्ले बेस्ड यानी खेल आधारित शिक्षण बच्चों को कैसे देना है। तो कभी कभी लोग ये कहते हैं कि बच्चों क्या खेल के ही सीखेंगे। तो खेलने का हमारा मतलब ये नहीं है कि अनसुपरवाइज्ड खेल जहां बच्चे जो कुछ चाहें, नहीं, हम कह रहे हैं कि खेल को हमें एक किसी योजना के साथ बच्चों के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। इट विल बी स्ट्रक्चर्ड प्ले विच यू हैव थॉट आउट वेल इन एडवांस। हमने प्लान किया है हाउ टू हैव द प्ले बेस्ड एक्सपीरियंसेस। तो ये सब चीज जो है आप सीखेंगे। साथ ही में कोर्स में ये भी आप जानेंगे कि बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं, और जो वो डाइट, खाना जो खा रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है या उसमें हमें किस तरीके का बदलाव करना है। और न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी हमें कुछ बहुत महंगे तरीकों से नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसान, सस्ते, रोज के तरीकों से हम हर कोई एक न्यूट्रिशनली एडिक्वेट भोजन खा सकता है, परंतु उसके लिए हमें सिलेक्शन फूड का, उसका प्रेपरेशन, ये जरूरी होता है कि हम क्या करें। तो ये सब बातें भी सीखेंगे। इसके अलावा इस कोर्स में हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास आंगनवाड़ी या आपके प्री स्कूल सेंटर में बच्चे अचानक कुछ उस समय बीमार होते हैं, तो आपको क्या करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस, और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे, हाउ टू सपोर्ट द चाइल्ड। Another important aspect of the program is that ECC programs में we need to participate with the community. बच्चों के माता पिता को हमें कई बातें उनको पता नहीं होती हैं. They are very interested in the development of the child, but they do not know the right practices.
So how will you be able to convince the parents? How you have to impart? How you will tell them about simple health and nutrition and preschool education messages? इससे भी आपको बहुत पता चलेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस कोर्स का ये है कि विकलांग बच्चे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उनको किस तरह से हम अपने प्री स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में आज ये बात है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को हमें अलग थलग ढंग से नहीं पढ़ाना है, बल्कि उनको वही समान परिवेश देना है जो किसी भी और बच्चे को मिलता है. So how will you identify a child with disability? How you can counsel the community to prevent disability? And how you can identify children, how you can include children with disability in your play-based learning activities? यह भी आप समझेंगे. So कुल मिलाकर इस प्रोग्राम को करने से आप ये समझते हैं कि किसी भी चाइल्ड केयर सेटिंग में, अर्ली चाइल्डहुड केयर सेटिंग में कैसे काम किया जाए, और आप इसके आधार पे अपना भी प्री स्कूल सेंटर यदि खोलना चाहें तो खोल सकते हैं. हमारे कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने इस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी लेके स्वयं का खोला है और बहुत बेनिफिटेड है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हुए, इस प्रोग्राम में 4 कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज का नाम है ये DEC 1, 2, 3 एंड 4. DEC 1 कोर्स का नाम है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, बाल विकास सेवाओं का आयोजन. कोर्स 2 का नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बाल स्वास्थ्य और पोषण. कोर्स 3 का नाम है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन. कोर्स 4 का नाम है प्रोजेक्ट वर्क, वर्किंग विद चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग. पूरा प्रोग्राम जो है ये 32 क्रेडिट्स का है. इग्नू की भाषा में क्रेडिट्स का मतलब होता है कितना पढ़ने का घंटे. तो एक क्रेडिट में 30 घंटे पढ़ाई के हैं. तो अगर हम 32 घंटे देखें, 32 क्रेडिट देखें, तो इसका मतलब हमारे को 960 घंटे की पढ़ाई करनी है. अब ये एक मोटा आंकड़ा है, तो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये जो 32 क्रेडिट है ये चारों कोर्स में इक्वली डिवाइडेड है. हर कोर्स 8 क्रेडिट का कोर्स है. थोड़ा सा गहराई में हर कोर्स के बारे में आपको बताते हुए, तो जो कोर्स 1 है इसमें 7 ब्लॉक हैं और एक प्रैक्टिकल मैनुअल है. अब ये प्रैक्टिकल मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा. इसका रिलेशन असाइनमेंट से है जो मैं आपको भी बताऊंगी. 7 ब्लॉक्स में 33 यूनिट्स हैं और इस कोर्स का फोकस है कि बच्चों का अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, फिजिकल, मोटर, लैंग्वेज. मोटर मतलब क्रियात्मक, यानी कि हम जो अपने हाथ पैर चला पाते हैं उसको कहते हैं मोटर विकास. लैंग्वेज, कॉग्निटिव माने मानसिक. सोशल और इमोशनल, भावात्मक और सामाजिक विकास बच्चों का किस प्रकार होता है. और इस कोर्स में फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि खेल आधारित प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज से बच्चों के ये सभी विकास किस प्रकार से बढ़ाए जाएं. और बेसिक प्रिंसिपल्स, अगर हम प्री स्कूल केंद्र खोलना चाहते हैं या कहीं पे हम काम भी करते हैं वहां पे, तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, करिकुलम कैसे बनाया जाए. 3 घंटे का, 4 घंटे का जो करिकुलम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, उसको बनाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं. स्पेस की व्यवस्था कैसे की जाए, कमरे में क्या केवल बच्चों को कुर्सी टेबल लेके बैठना है या कोई और आकर्षक तरीका हो सकता है छोटे बच्चों के बैठने का, जो अक्सर टेबल कुर्सी पे एक्चुअली बैठना नहीं चाहते हैं, उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो हर समय कुछ करना चाहते हैं. तो ये सब बातें जो हैं ये हमें कोर्स 1 में पता चलेंगी. कोर्स 2 जो हमारा है वो है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर. इसमें 8 ब्लॉक्स हैं, 30 यूनिट्स हैं. वंस अगेन इसमें भी प्रैक्टिकल मैनुअल है जिसका लेन देन हमारे असाइनमेंट्स के साथ है. I will just tell you about how practical manual is related to assignment. In this, we are learning about health and nutritional needs of young children, balanced diet यानी संतुलित भोजन कैसे बनाया जाए, और किस प्रकार से कम पैसा खर्च करके इन्फेंट्स, टॉडलर्स, प्री स्कूलर्स और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को भी कैसे हम भरपूर आहार दे सकते हैं. आप ये सोच सकते हैं कि बच्चे के कोर्स में हम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स की बात क्यों कर रहे हैं. तो उसका कारण ये है कि हमारा मानना है कि एक तंदुरुस्त बच्चा पहले तभी होगा जब माँ का गर्भावस्था के दौरान उसका हेल्थ स्टेटस ठीक होगा, और स्तनपान कराने के दौरान वो बच्चे को ठीक तरीके से बच्चे का लालन पोषण कर पा रही है. इसलिए हम एक लाइफ साइकिल अप्रोच को फॉलो करते हुए ये प्रोग्राम है. इसलिए प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स की केयर भी इसके अंतर्गत आती है, इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डिलीवरी एंड लेबर. एंड देन कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस जो हो सकती हैं बच्चों को, आम मुख, आंख, दांत का श्वसन संबंधी, ब्रीदिंग संबंधी डिफिकल्टीज,
पेट संबंधी डिफिकल्टीज जो कॉमन है, इनके बारे में बात है। और जो मेजर हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, आप सबने शायद पढ़ा होगा कि देश में बहुत ही अल्प पोषण के कारण कई बच्चे हैं अंडरवेट हैं और कुछ बच्चे ओवरवेट भी हैं। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है या आपको क्या करना है, और देश में कौन से मुख्य न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसकी आप माता पिता को जानकारी दे सकते हैं और वो उसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में भी बातचीत है। कोर्स 3 फिर जो हमारा है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, इसमें थोड़ा सा हल्का कोर्स है, 20 यूनिट है, 5 ब्लॉक्स है। हल्का इसलिए है क्योंकि इसमें हमने डिसेबिलिटी के बारे में बात की है, तो ज्यादा पढ़ने में समझने में समय लगेगा, इसलिए इसके यूनिट्स थोड़े से कम है। यहाँ भी प्रैक्टिकल मैनुअल है जो असाइनमेंट से रिलेटेड है। इस प्रोग्राम में वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इस कोर्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, कौन सी संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम कर रही हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को लर्निंग एक्सपीरियंसेस में कैसे शामिल करना है। आप कहानी सुना रहे हैं पर आपके पास मान लीजिए एक बच्चा है जो दृष्टिहीन है, सो हाउ विल यू अडैप्ट योर नरेशन स्टाइल फॉर दिस चाइल्ड, and you will also come to know how to strengthen your skills of interacting with the community. चौथा जो कोर्स है वो है प्रोजेक्ट वर्क। इसके लिए बहुत क्वेरीज रहती हैं, इस पे मैं 2 मिनट बाद विस्तार से भी बताऊंगी। मोटे तौर पे यहाँ पे बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट वर्क में आपको बच्चों के साथ एक नर्सरी स्कूल या प्री स्कूल या प्री प्राइमरी सेक्शन या एक ऐसी आंगनवाड़ी जो 2 से 3 घंटे प्री स्कूल एजुकेशन करिकुलम रोज का डिलीवर करती हो, यानी एक गुड फंक्शनिंग आंगनवाड़ी, वहां पे आप काम कर सकते हैं। एंड यू हैव टू वर्क फॉर 30 वर्किंग डेज। मुख्य काम रहेगा कि आपको बच्चों के साथ खेल क्रियाएं करनी है, प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज, और मेन बात है एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन द प्रोजेक्ट मैनुअल। तो प्रोजेक्ट मैनुअल जो आप सबको रिसीव हुआ है, नहीं भी हुआ है तो हो जाएगा, उसको बहुत पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पूरे कोर्स को ही बहुत जरूरी है, और उसी के आधार पे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। कई बार बहुत गलत किस्म के बच्चों के क्वेरीज आ जाते हैं, मैडम प्रोजेक्ट वर्क का क्या साइनॉप्सिस है, तो इसमें तो कोई साइनॉप्सिस की बात ही नहीं है। साइनॉप्सिस तो तब होता है जब हम कोई रिसर्च एक्टिविटी करने चले। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उससे समझ में आता है कि शायद स्टूडेंट ने अपना मैनुअल जो है वो पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, केवल तभी ही आप एक सही प्रोजेक्ट वर्क कर पाएंगे, क्योंकि आप जो बच्चों के साथ एक्टिविटीज करेंगे वो आपको एक एक्टिविटी प्लान बनाना है पहले, और एक्टिविटी करने के बाद आपको उसकी रिपोर्ट लिखनी है। ये एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट कैसे लिखनी है, यह मैनुअल में, प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया गया है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और हमने सैंपल रिपोर्ट भी दी है। तो उसको जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कि इसके लिए काम हमें कैसे करना है। ये एक्टिविटी प्लान्स और रिपोर्ट्स जब आप हर रोज का काम करेंगे, जिसमें अभी मैं और डिटेल में बताती हूँ इसके ऊपर दूसरी स्लाइड के थ्रू, अभी यहाँ ब्रीफ में बता रही हूँ, जब ये आप सब जमा करते जाएंगे तो आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल जमा हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट फाइल हर रोज के काम से बनेगी। लास्ट में अचानक एक दिन काम करने बैठेंगे तो हमारी प्रोजेक्ट फाइल नहीं तैयार होगी। द डेली वर्किंग, द डेली सिंसियर वर्क of doing the project work every day for 30 working days with the child in a preschool is what will lead you to make a project file. So this is in brief about the project work. I will explain to you in detail. To the next slide, for the time being I am coming and telling you कि study material आप तक पहुंच गया होगा। हो सकता है अभी तक कईयों पे नहीं पहुंचा हो study material, तो do not worry। खासकर हो सकती है कि प्रोजेक्ट मैनुअल किसी के पास भी अभी तक ना पहुंची हो, तो प्रोजेक्ट मैनुअल आपको भेज दी जाएगी। और अगर आपने नहीं मिला है या कईयों ने ई मटेरियल ऑप्ट किया होगा, तो ई मटेरियल हमारे ई ज्ञान कोश, ये जो यहाँ पे आपको मैंने पूरा लिंक ही बताया है, पर जो साइट है वो ई ज्ञान कोश है। ई ज्ञान कोश पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको ई स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रोग्राम गाइड अपलोडेड है, पहले प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ लीजिए, इसमें कई It answers many of your basic question. DEC 2 का पूरा मटेरियल, इन जो मैंने ये लिंक्स बताए हैं यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। DEC 1, 2, 3 और प्रोजेक्ट वर्क का भी पूरा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप स्टडी मटेरियल ढूंढेंगे सॉफ्ट कॉपी ई ज्ञान कोश पे। और ई ज्ञान कोश पे एक और चीज जो ये है कि लगभग चैप्टर बाय चैप्टर हमने काउंसलिंग वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड किए गए हैं। और इसके अलावा शायद आपके रीजनल सेंटर्स ने भी आपको लिंक भेजा है जहां पे हमने
चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करी है, तो वो ये जो वीडियोस हैं वो वंस अगेन आप ये ई ज्ञान कोश के ऊपर देख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इग्नू के ही रिसोर्सेज को यूज करिए। कई बार आपके पास यू मे बी गेटिंग फोन कॉल्स फ्रॉम अदर सोर्सेज विच आर टेलिंग यू कि ये पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। जब सब कुछ यहाँ इग्नू में आपके पास उपलब्ध है और आपके रीजनल सेंटर ने आपको दिया है, तो यही ऑथेंटिक मटेरियल है, इसी को पढ़िए। कुछ और जो एक छोटी सी गाइड्स बना देते हैं लोग, उसको मत पढ़िए, बिकॉज उससे यू विल नॉट गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और आप एग्जाम में भी उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अभी अगली स्लाइड पे ही मैं आपको बताने वाली हूं कि एग्जाम पैटर्न हैज चेंज्ड। So it is very important that you study the authentic material from IGNOU authentic website and watch our programs. आपको इसके अलावा कुछ और देखना है तो आप देख लें, परंतु उन पे निर्भर होकर अगर आप काम करेंगे तो फिर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। असाइनमेंट्स के बारे में बताना चाहती हूं अब मैं। 3 थ्योरी कोर्स के 3 असाइनमेंट्स हैं और हर असाइनमेंट का पार्ट ए, बी और सी है। पार्ट ए थ्योरी है और पार्ट बी और सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, जिनको कि आपको प्रैक्टिकल मैनुअल से करना है। सो अब आपको ये लिंक समझ में आ गया होगा। होप यू अंडरस्टूड द लिंक बिटवीन प्रैक्टिकल मैनुअल एंड असाइनमेंट। सो देयर आर 4 डिफरेंट थिंग्स। There is one practical manual with every course. DEC 1 has its practical manual, DEC 2 has its practical manual, DEC 3 has its practical manual. And there is a separate thing called project manual. Project manual is for the project work. So practical manual is related to the assignment. Assignment का जो B और C पार्ट है, उसमें आपको एक एक्सरसाइज करनी है पार्ट B में और एक एक्सरसाइज करनी है पार्ट C से। पार्ट बी और ये कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, ये प्रैक्टिकल मैनुअल में लिखा। तो पहले असाइनमेंट डाउनलोड करिए, उसमें पार्ट बी और सी पढ़िए, देन ओपन द रेलेवेंट प्रैक्टिकल मैनुअल, सिलेक्ट द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच यू वांट टू डू। हमने चॉइस दिया, हमने बोला 3 में से कोई एक कर लीजिए। सो समटाइम्स मेनी ऑफ यू सेंड असाइनमेंट्स विच आर विदाउट द पार्ट बी एंड सी। टोटल असाइनमेंट 100 नंबर का है, पार्ट ए के 60 नंबर है। If you do not submit B and C, then you are losing 40 marks. 40 नंबर तो आपके सीधे गए, आपको 60 में से कुछ नंबर मिलेंगे। So my main point to motivate the students is that अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि हमारे नंबर भी अच्छे आए, क्योंकि कल को हम यही मार्कशीट कहीं ले जाना चाहते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर उस पर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं दर्शा जा रहे हैं तो हमारी क्या उसमें सीरियसनेस रही होगी कोर्स को पढ़ने में, ये नजर आता है। सो प्लीज टेक द असाइनमेंट्स वेरी सीरियसली। डू द पार्ट ए विच इज थ्योरी फ्रॉम द ब्लॉक्स, डू द पार्ट बी एंड सी बाय रेफरिंग टू द प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ ईच कोर्स। ओनली वन एक्सरसाइज हैज टू बी डन एंड इट इज एक्सरसाइजेस आर वेरी सिंपल। अपने घर में किसी बच्चे को ऑब्जर्व करिए और जो रिक्वायरमेंट है वो लिखिए। किसी को अपने ही आस पड़ोस में किसी को इंटरव्यू करिए और जो उस प्रैक्टिकल का रिक्वायरमेंट है वो करिए। तो इस प्रकार से डू नॉट इग्नोर दिस पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। मेनी रीजनल सेंटर्स हैव प्रोबेबली सेंट यू द असाइनमेंट। इफ नॉट, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस लिंक विच इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। कभी कभी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट थोड़ा सा नहीं चलता है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे विजिट कर रहे होते हैं। पेशेंटली थोड़ा नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कर लीजिए। सभी असाइनमेंट्स अपने रीजनल सेंटर्स ही देने हैं। कई लोग असाइनमेंट्स हमें हेडक्वार्टर भेज देते हैं, उसमें हमारी तरफ से फिर बहुत डिले हो जाता है उसकी चेकिंग के लिए। सो रीजनल सेंटर्स वुड हैव टोल्ड यू और दे विल टेल यू। जो रीजनल सेंटर आपको बोले असाइनमेंट सबमिशन के लिए, आप केवल वही काम करें, असाइनमेंट कहीं पर भी और नहीं भेजें। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूं मैं आपको इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी बताते हुए। तो अभी जैसे मैं बोल रही हूं, असाइनमेंट जो है ये इवैल्यूएशन का पार्ट है। आपके जो नंबर आएंगे उसके 30% आपका मार्क्स जो आपके रिपोर्ट कार्ड है उस पे आपको, जो आपका ग्रेड कार्ड है उस पे रिफ्लेक्ट होगा। सो आपका जो, अगर आपको असाइनमेंट में 80 नंबर मिले हैं 100 में से, तो उसका 30% आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके ग्रेड कार्ड पे। बाकी जो 70% एग्जाम है वो टर्म एंड एग्जाम। और इस बार सभी लोग सुन लें बहुत ध्यान से कि टर्म एंड एग्जाम अब बिल्कुल भी सब्जेक्टिव एसे टाइप नहीं रहेगा। द टर्म एंड एग्जाम इज नो लॉन्गर एसे टाइप
It is going to be multiple choice questions. There will be 100 questions multiple choice which you will have to answer in 3 hours. दोबारा रिपीट करती हूँ, 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. ये है हर पेपर में एक ऐसा एग्जाम. सो DEC 1 का 100 क्वेश्चंस का एग्जाम, DEC 2 का 100 क्वेश्चंस का एग्जाम, DEC 3 का 100 क्वेश्चंस का एग्जाम. इसकी जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे. और केवल सिंपल मल्टीपल चॉइस नहीं आएंगे, इसमें मैच द फॉलोइंग भी आएगा, इसमें तर्क यानी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे. तो ये बात आपको मैं दोबारा फिर इसलिए एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस रियली रिक्वायर्स दैट यू स्टडी द कोर्स मटेरियल वेरी वेल. सो बहुत ध्यानपूर्वक कोर्स मटेरियल को केवल ऊपर पढ़ाई करने से हमारे क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाएंगे. आपको थोड़ा सा गहराई में इसके लिए जरूर अपना पढ़ाई करनी पड़ेगी. इसलिए ऑथेंटिक इग्नू मटेरियल को ही पढ़ना बहुत जरूरी है. एग्जाम से अपीयर होने से पहले यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट्स. और ड्यू डेट असाइनमेंट पे लिखी है आप लोगों के लिए 30 सितंबर है. 30 सितंबर से पहले अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर देंगे तो आपका बेटर रहेगा. उसके बाद जब आपको एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम फॉर्म से आप बाकी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और DEC 4 जो कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, इसके लिए कोई टर्म एंड एग्जाम नहीं है. इसके लिए प्रोजेक्ट फाइल से ही होगा आपका चेकिंग. और ये मैं अभी इस स्लाइड शो के बाद दूसरा स्लाइड शो पुटअप करती हूँ जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में और डिटेल बताती हूँ. तो चारों ही कोर्स में पास होना जरूरी है, केवल तभी ही आपको डिप्लोमा मिलेगा. और आपका पहली बार आप एग्जाम दे पाएंगे दिसंबर में. पर जैसे कि आप जानते हैं दिस प्रोग्राम इज ऑफ 3 years ड्यूरेशन. सो इफ यू थिंक आप सारे एग्जाम्स दिसंबर में नहीं दे सकते, यू कैन कीप सम एग्जाम्स फॉर जून. इस साल में अपना प्रोग्राम करना है तो और अगर आगे कब तक आपको समय बढ़ाना है तो फिर आप अपने अगले साल में जब भी देना चाहें दे सकते हैं. द रीजनल सेंटर्स विल बी ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग सेशन. हर कोर्स के लिए 10-10 काउंसलिंग सेशन है. DEC 1 के लिए 10, 2 के लिए 10, 3 के लिए 10 और प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी 10 सेशंस हैं. ताकि अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क करते करते कुछ डिफिकल्टी हो तो आपको रीजनल सेंटर वहां पे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आप सभी काउंसलिंग सेशंस जरूर अटेंड करिए. इट विल रियली हेल्प यू बिकॉज आप वहीं के वहीं अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. फिलहाल मैं इस स्लाइड शेयर को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और प्रोजेक्ट वर्क के लिए मैं आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट का वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ. आप सभी को सॉरी मेरा शेयरिंग विजिबल है क्या? Yes, ma'am, it is visible. Okay, so everybody will get the project manual. Main project work आपको project manual ही पढ़ना है. परंतु कुछ हमने project manual में changes करे हैं जिसको कि यहाँ पे additional guidelines के नाम से ये 7-8 पेज का एक डॉक्यूमेंट है. इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है. यह आपको सभी को रीजनल सेंटर्स के अपने वेबसाइट पे मिल जाएगा मंडे ट्यूसडे तक. अभी शायद नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भेजा नहीं है रीजनल सेंटर्स को. ये एडिशनल गाइडलाइंस आपको पढ़नी है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनुअल जो है उसके अंदर कुछ जो एनेक्शर्स हैं उसमें बदलाव हुआ है. एडिशनल एनेक्शर्स यहाँ पे लगे हैं जो आपको देने जरूरी हैं और कुछ एडिशनल बातें हमने बताई हैं जो मैं अभी आपके इसके थ्रू गो थ्रू कर रही हूँ. सो एनीबडी जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क करें, चाहे करंट स्टूडेंट्स या पहले के बैच के स्टूडेंट्स who have not done their project work, please refer to this guidelines. As I am saying, this document is only about modifications. You have to read the project manual DEC 4 before you can start on the project work. So only then will you understand these guidelines. So as I have told you already clearly, यहाँ पे जो लिखा है कि practical exercises are different from project work. For project work, you have to carry out activities with children between 3 to 6 years of age under the supervision of a guide in a preschool, nursery school or pre-primary section or as I said, a well-functioning आंगनवाड़ी. आप बहुत सारे स्टूडेंट शायद हमारे रूरल इलाके से हैं
जहां शायद आपको आंगनवाड़ी ही शायद प्राप्त होगी, शायद कोई प्री प्राइमरी सेक्शन स्कूल का या कोई नर्सरी स्कूल शायद ना हो, तो आप आंगनवाड़ी यदि ढूंढें तो ये जरूर ध्यान रखें कि वहां पे भी अब सरकारी नियम है कि कम से कम 3 घंटे का प्री स्कूल कार्यक्रम चला रही हो आंगनवाड़ी सेविका जो है। तो ऐसी ही एक सुदृढ़ आंगनवाड़ी ढूंढिएगा, क्योंकि आप ये बात समझिए कि जितना अच्छा आप प्री स्कूल ढूंढेंगे उतनी अच्छी आपको गाइडेंस मिलेगी और उतनी अच्छी आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। और प्रोजेक्ट फाइल का पास परसेंटेज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लो रहता है, बिकॉज स्टूडेंट्स जस्ट गिव अस कॉपीड प्रोजेक्ट फाइल। शायद आप में से कई लोगों को अब तक फोन कॉल आ गया होगा कि प्रोजेक्ट वर्क करना है तो इस फला नंबर पे बात कर लीजिए और आपकी प्रोजेक्ट फाइल मिल जाएगी। मैं सभी स्टूडेंट्स को सतर्क करना चाहती हूँ कि ऐसी कॉपीड जो फाइल्स होती हैं या मार्केट से बनी, जो हमारे इग्नू के इवैल्यूएटर्स हैं जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं और बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, फिर ऐसी फाइल्स जो हैं वो स्टूडेंट पास नहीं हो पाता। और ये मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि इफ यू सबमिट अ फाइल विच इज नॉट अप टू द मार्क एंड यू आर आस्क्ड टू रीडू योर प्रोजेक्ट वर्क, यू वेस्ट 6 months, 6 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि जब तक आप हमें भेजेंगे हम चेक करेंगे, हम वापस आपको रिपोर्ट उसकी देंगे और आप फिर उसको रीसबमिट करेंगे, तो आपका सारा काम 6 महीने पीछे हो जाता है। तो एक तो मैं मॉरली भी सभी स्टूडेंट्स को ये अपील कर रही हूँ कि आप उन बच्चों के साथ काम करने के लिए आ रहे हैं जो देश के सबसे छोटे नागरिक हैं, और इस समय उनका जो मस्तिष्क का जो विकास हो रहा है आप उसका दायित्व लेने जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना काम भी बहुत ही सिंसियरिटी से करें, कहीं से कॉपी ना करें, एक दूसरे से चर्चा करें, काउंसलर से पूछें, सलाह लें, परंतु काम अपना अपना करें। और किसी भी तरीके से नेट पे बहुत सामान उपलब्ध है, ये इग्नू को भी पता है, परंतु आप उस चीज को यूज ना करें, केवल अपना ऑथेंटिक काम ही करें। अगर आप अपनी तरफ से ऑथेंटिक काम करेंगे तो आपके एवरेज काम के भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर आप कॉपीड बहुत बेहतरीन काम देंगे तो उसमें भी आपको रीसबमिशन आ जाएगा। सो ये बात मैं बहुत क्लियरली स्टूडेंट्स को, ये मेरा मैसेज है और रिक्वेस्ट है कि हम अपने बिल्कुल जो ओरिजिनलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको बिल्कुल बनाए रखें। सो प्रोजेक्ट वर्क करने से पहले, क्योंकि आप लोग इतने चिंतित होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए कि आप लोग शुरू से ही प्रोजेक्ट वर्क ही पहले शुरू कर देते हैं, और क्योंकि आप कोर्स 1 नहीं पढ़ते हैं इसलिए प्रोजेक्ट वर्क ठीक नहीं होता है। सो मेरी गुजारिश है टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज फर्स्ट रीड कोर्स 1, बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क का यही आधार है। Only when you will know children's development, only when you will know about play activities, can you plan activities in the preschool. Otherwise, you are planning incorrect activities and you are not getting good marks, or you have to do it again. So first step, read course 1. Next step, read the project manual. Because as I said, I get mails, madam synopsis de dijiye. There is no synopsis because this is not research. This is actual work with children. So read the project manual. थर्ड स्टेप, ये जो एडिशनल गाइडलाइंस आपको आ जाएंगी ये आप पढ़िए। और चौथा स्टेप है, अब आप एक स्कूल ढूंढिए और कोशिश करिए ऐसा प्री स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी सेक्शन या आंगनवाड़ी ढूंढिए जहां पे प्ले बेस्ड लर्निंग से काम हो। कई मेरे पास फाइल्स आती हैं, उसमें वो बच्चा पर्सनली आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं मैडम हमारा काम हो गया, ये रही फाइल, पर हमें गाइड नहीं मिला। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आता है तो ये तो क्लियर है कि उस स्टूडेंट ने काम ही नहीं किया, क्योंकि गाइड तो आपका नर्सरी स्कूल जो आपने आइडेंटिफाई किया है वहां पे जो जिस क्लास में आप काम करेंगे उस क्लास की जो टीचर है वो है आपकी गाइड। अगर आप एक बनी बनाई फाइल ले आते हैं और कहते हैं कि मैडम अब हमें गाइड नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या समझे कि आपने तो काम ही नहीं किया स्कूल में, वरना आपने तो प्रोजेक्ट मैनुअल ही नहीं पढ़ी। नहीं तो आपको पता होता कि गाइड तो उस नर्सरी स्कूल की वो शिक्षिका है जो काम वहां कर रही है और जिसकी पूरी सुपरविजन के अंतर्गत आप अपनी फाइल बनाएंगे। तो आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो बच्चों के साथ काम करेंगे, वो ये नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल या आंगनवाड़ी वर्कर आपको देखेंगी, आपके एक्टिविटी प्लान पे नंबर देंगी 10 में से, फिर आपको जो आप काम कर रहे हैं बच्चों के साथ जो एक्टिविटी करी उस पे नंबर देंगी 10 में से, और जो आपने उसकी रिपोर्ट लिखी उसमें से नंबर देंगी 10 में से। ऐसे हर दिन के 30 नंबर हैं, ऐसे इकट्ठे होते वो लास्ट में आपको मार्क्स देंगे। तो बिना गाइड के तो हम बढ़ ही नहीं सकते आगे। तो बाद में तो
कोई गाइड ढूंढने का मतलब ही नहीं है। और यदि आपको अपने गाइड को ढूंढने में या स्कूल ढूंढने में कोई मुश्किल हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको भी कंफ्यूजन है, कुछ गाइड को भी कंफ्यूजन है, प्रोजेक्ट मैनुअल की आपको यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कॉन्टैक्ट योर रीजनल सेंटर. They are going to organize counseling sessions for the project work. 10 counseling sessions program guide में लिखे हैं. और काउंसलर्स ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कोई मुश्किल हो जो काउंसलर आपको सुलझा ना सके. और बिल्कुल ही लास्ट में अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ ना आए तो ऑफ कोर्स हम हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर में, आप हमारे को भी क्वेरी लिख सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि वहां तक कोई सिचुएशन ऐसी आई. संक्षेप में बचाते हुए प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, यू हैव टू वर्क फॉर 30 days. पहले 5 दिन आप सिर्फ गाइड को ऑब्जर्व करेंगे और वो सुबह से दोपहर तक या 3 घंटे जो बच्चों के साथ काम कर रही हैं, यू हैव टू राइट इट एज अ रिपोर्ट. वी हैव गिवन अ सैंपल रिपोर्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड. अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स कॉपी दैट सेम सैंपल रिपोर्ट एंड गिव इट इनटू द प्रोजेक्ट फाइल. अगर आप हमारी ही दी हुई सैंपल रिपोर्ट हमें वापस कर देंगे तो वहां पे तो नंबर कट जाएंगे ना. So please be very careful. We have given a sample so that you understand what has to be done, but write your own project report. And ours is only a sample. आप हमसे बेटर भी लिख सकते हैं, आप हमसे बेटर एनालिसिस भी कर सकते हैं. So उसको बिल्कुल वही कॉपी करना है, वही वैसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं. अगले 20 दिन आपको बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी है. तो 5 दिन आपके खत्म हो गए, अब आप डे 6 पे आ गए. आप पहले 10 दिन एक एक्टिविटी करेंगे बच्चे के साथ. वो भी क्या एक्टिविटी करनी है प्रोजेक्ट मैनुअल में लिखा हुआ है, उसी तरीके से जाइए, उसी सीक्वेंस में जाइए. एक्टिविटी करने से पहले यू हैव टू डेवलप एन एक्टिविटी प्लान जो आप इस गाइड को दिखाएंगे. शी विल करेक्ट इट, शी मे सजेस्ट चेंजेस. उनकी बात जो है वो समझिए, चेंज करिए और आप उस एक्टिविटी को करिए बच्चों के साथ और फिर उसकी रिपोर्ट लिखिए. तो 2-3 एक्टिविटी प्लान्स आप इकट्ठे दिखा सकते हैं गाइड को और 2-3 दिन एक्टिविटी करके फिर उनकी रिपोर्ट लिख सकते हैं. पर हर दिन का काम अगर आप हर दिन करेंगे आपका काम ज्यादा इजी होगा. डू नॉट थिंक दैट आई विल डू 30 एक्टिविटीज एंड देन आई विल राइट द 30 रिपोर्ट्स. यू विल बी ऑल कंफ्यूज्ड. रिपोर्ट सब सेम हो जाएंगी. और रिपोर्ट ये नहीं होती है कि मैं गई, मैंने बच्चों के साथ काम किया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा और सबको सब कुछ समझ आ गया. दिस 4-line राइटिंग इज नॉट अ रिपोर्ट. In the report you have to explain how things happened. कुछ गलत भी हुआ होगा, कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए होंगे, कुछ आपने क्वेश्चंस पूछे होंगे, वो सब आए. Once again, sample activity plan, sample activity report is already written in the thing for you to get an idea. So now this way आपके 10 दिन और यानी 15 दिन खत्म हो गए. 15 दिन में आपने पहले 5 दिन ऑब्जर्व किया और 10 दिन आपने एक एक्टिविटी की. Now for the next 10 days, यानी from day 15 to day 25, you have to do 2 activities per day. थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं. Once again, in the sequence given in the project manual, total आपने phase 2 में यानी 30 activities करी. और अब phase 3 आता है आपका, जब आपको एक सप्ताह का करिकुलम बनाना है. You have to develop a curriculum for a week. Because you have studied in DEC 1 how to make a curriculum, you will be able to make the curriculum. Of course with the guidance of the guide. आपकी गाइड इसमें आपको हेल्प करेंगी कि सुबह से दोपहर तक बच्चों के साथ एक एक एक्टिविटी क्या करें. जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आप समझेंगे एक थीम ली जा सकती है. मान लीजिए आपने फल का थीम लिया, उसके आसपास बच्चों के साथ एक्टिविटी की जा सकती है. माय बॉडी उसके आसपास की जा सकती है. माय फैमिली, इस तरीके से. और यानी अब आप बच्चों के साथ जब पूरे दिन काम करेंगे तो लगभग 3 से 4 एक्टिविटीज हो जाएंगी. ये 3 से 4 एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडिंग खाना पीना, मॉर्निंग प्रेयर, खेलने जाना, ब्रेक, लंच टाइम. इसके अलावा ये 3 to 4 लर्निंग एक्टिविटीज है. सो टोटल 15 to 20 आपकी लर्निंग एक्टिविटीज होंगी. ऑल डिटेल्स आर गिवन इन द प्रोजेक्ट मैनुअल. सो दिस विल मेक योर, जब आप ये सब करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लिखेंगे, आपकी प्रोजेक्ट फाइल साथ साथ बनती जाएगी. एज आई सेड, राइट अ फ्यू प्लान्स, शो टू द गाइड और फिर अगला करिए. जितनी एक्टिविटीज कही गई हैं उतने ही बच्चे के साथ करिए. डू नॉट डू मोर देन व्हाट वी हैव सेड इन phase 2. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई गेट मेनी क्वेरीज फॉर दिस, आपको अपनी हर एक्टिविटी का एक वीडियो बनाना है. मेनी पीपल से कि मैडम वीडियो स्कूल परमिट नहीं कर रहा है. आपको स्कूल का तो वीडियो बनाना ही नहीं है. Tell the teacher who is your guide that take this mobile of mine or any other device और मेरे पे फोकस करते हुए मेरा वीडियो बनाइए. उसमें बच्चे की बैक आएगी,
आपका स्कूल का हमें कहीं नाम नहीं चाहिए, because this needs to be submitted along with the project work. Now, do not make a video sitting at your home. वो बिल्कुल यहाँ पे जो evaluators हैं उनको पता चल जाता है. Do not take each other's video and submit it. And most importantly, आपने जो activity करी उसके साथ corresponding video वही होना चाहिए. Many time we get the activity कि day 2 में activity थी कहानी सुनाना और day 2 का जो video है वो कुछ और है. So all of such things show that the work has not been done sincerely. कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप 30 दिन सिंसियरिटी से काम करते हैं तो काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और अगर हमें इसको ऐसे लगता है हम इसको एक बोझ समझ के काम करते हैं तो फिर सब कुछ ही मुश्किल हो जाता है. So please take this video of about 5 minutes duration. And so आप देखिए 45 to 50 videos क्यों बन जाएंगे, दोबारा देखिए. In phase 2 you are doing 30 activities, so 30 यहाँ पे, and in phase 3 you are doing a maximum of 15 and a minimum of 15 and maximum of 20. तो इतने आपके videos बन रहे हैं. Now before you make the videos आप permission ले लीजिए प्रिंसिपल का या नर्सरी स्कूल के इंचार्ज का, जो इंटर्न बच्चों के माता पिता को भी बता देंगे, पर कहीं पे भी हमें बच्चों का चेहरा नहीं चाहिए. जब आपका दूर से वीडियो लिया जाएगा तो उसमें बच्चों की केवल पीठ ही आएगी, और आपका स्कूल चाहे तो आप उनको ये सारे वीडियोस दिखा दीजिए कि ये हैं वीडियोस जो मैं सबमिट कर रही हूँ, ताकि उनको किसी भी प्रकार का दे आर नॉट इन फियर कि उनके स्कूल का कुछ बदनामी होगी या समथिंग. सो यही सब कुछ क्लियरली लिखा है यहाँ पे. आप यू शुड बी क्लियरली विजिबल. एंड अब जो अनेक्षर है, आपको प्रोजेक्ट मैनुअल के पीछे कुछ अनेक्षर्स हैं, मैंने आपको बताया था. ये अनेक्षर काफी तो सेम है पर 2 बदले हुए हैं जो अभी आगे इसी गाइडलाइन में लिखा है. अनेक्षर 1 और ए और 1 बदला हुआ है, जिसमें अब आप ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि आपने ये सब काम किया, आपने परमिशन एक्सेट्रा ली. ये वीडियोस को इग्नू भेजने के 2 तरीके हैं. एक तो ये है कि आप इनको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं. मेनी पीपल से दैट इन यूट्यूब हमें आता नहीं है करना. सो अगर आप, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. अगर नहीं भी आता हो तो कोई जो व्यक्ति जिसको आजकल आप आजकल के करंट जनरेशन के बच्चों से पूछें तो वो बता भी देंगे. नहीं तो यूट्यूब इटसेल्फ पे देयर आर वीडियोस हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब. व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट अपलोड देम इन द प्राइवेट मोड. जब आप प्राइवेट मोड में अपलोड करते हैं तो जिसके पास लिंक है केवल वो ही वीडियो देख सकता है. Many people do not want that their videos should be seen by everybody. It is correct. So as you upload the video, उसका link copy कर लीजिए, note that link, attach that link with the project file. So you will be attaching 50 such links which we will see. And if while uploading the video आप click करते हैं private, so nobody can see the video except us. क्योंकि लिंक केवल हमारे पास है, unless आपने किसी और के साथ शेयर किया है, और हम यहाँ से हम कहीं और शेयर करेंगे. जब आपके मार्क्स लग जाए तो आपको वीडियोस वहां से हटा सकते. इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू द वीडियोस, यू प्लीज सेंड द वीडियोस इन द पेन ड्राइव. व्हेन यू सेंड द पेन ड्राइव, प्लीज सेंड इट केयरफुली. उसको रैप करके बबल पेपर एक्सेट्रा में, सो दैट इट डजंट गेट डैमेज. पुट इट इन द सेम फाइल एज द प्रोजेक्ट फाइल एंड सेंड इट ऑफ इन अ वे ताकि वो ट्रांजिट में वो कहीं पे खराब ना हो. सुपरविजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, द गाइड रोल इज दैट शी विल वॉच यू एवरी डे, करेक्ट योर प्लान्स एंड रिपोर्ट्स एंड गिव यू मार्क्स फॉर डूइंग द एक्टिविटी. सो गाइड को भी प्रोजेक्ट मैनुअल अपनी ले जाके थोड़ा दिखा दीजिए. उनको भी थोड़ा सा मोटा, वो शायद उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, शी वोंट रीड द होल थिंग, बट एटलीस्ट मोटा मोटा आप उनको बता सकते हैं दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू. So guide is the person with whom you have to meet on a regular basis and she has to sign the various annexures जो आपके project manual के पीछे हैं. I will come to that. Who can be the guide? थोड़ा सा इस पे ध्यान लें, क्योंकि once again this depends on the quality of the preschool. As I said, there are many types of preschools, some of which are not actually of good quality, क्योंकि वो preschools जो हैं बच्चों को केवल rote memorization, लिखित काम ही केवल करा रहे हैं, प्ले के माध्यम का वहां कुछ नहीं है. तो ऐसे there is a question regarding the duration of the video in the chat box. Yeah, I said it should be a 5 minutes duration. It's written also over here. I will take it upstairs. I'll roll it up just a minute. Okay, so I think it is clear to the students now that yeah, it's written also. It's written here somewhere. जल्दी से मुझे मिलेगा नहीं. ये रहा.
5 minutes duration. I've highlighted it now. 5 ही मिनट, हमें पूरी आपकी 20-25 मिनट की एक्टिविटी नहीं चाहिए. जस्ट अ 5 minute clip. You can choose your best clip. जहां आपको लगता है कि you are doing the right thing, you give an indication to the person कि आप यहाँ पे हमें क्लिक करना शुरू कर दीजिए, और वहां पे वो आप अपना क्लिक करिए, अपनी बेस्ट स्टोरी नरेशन, बेस्ट एक्टिविटी जो आप दिखाना चाहते हैं वहां पे दिखाइए. ओके. सुपरविजन ऑफ द प्रोजेक्ट, या हु कैन बी द गाइड पे मैं थी. सो जब आप अपना स्कूल ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा गाइड से उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पूछ लीजिएगा. ये हमने यहाँ पे 3-4 क्वालिफिकेशन लिखी हैं which shows that the person who is working with children has an idea about how to work with children. So home science, anybody has done master's or bachelor's degree and they are working, they are very good guide because they will be able to guide you. Somebody who has done PG diploma or a diploma in nursery teacher training, या किसी और, क्योंकि डिप्लोमा के अलग अलग नाम है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, दैट पर्सन विल बी अ वेरी गुड गाइड. डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, DLED जिसको कहते हैं, दैट पर्सन विल बी अ वेरी गुड गाइड. B.Ed degree is a good degree, but B.Ed degree does not actually train you to work with young children. तो अगर कोई B.Ed, कोई टीचर है जिसके पास B.Ed डिग्री है, थोड़ा सा उनसे पूछ लीजिए, बातचीत कर लीजिए, that if she has done some training program or workshops or some seminars in the area of preschool education. So you can the idea is कि जितनी आपकी गाइड साउंड होंगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, उतना आपको अच्छा वो मिलेगा. ऐसा नहीं है कि इग्नू आपको तंग कर रहा है रिस्ट्रिक्शंस लगा लगा के. हमारा आइडिया, ये पैरामीटर्स इसलिए बनाए हैं सो दैट योर प्रोजेक्ट वर्क इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड यू गेट गुड मार्क्स इन दैट. एंड द गाइड शुड बी वन हु शुड एटलीस्ट हैव बीन वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 month. She should have been working for 1 year. She should have been working at least for a minimum period of 1 year with the children. ऐसी ही गाइड सिलेक्ट करिएगा. कोई नई है जो अभी ही ज्वाइन किया है, फिर वो रीजन यही है कि इफ अ पर्सन इज न्यू, हाउ विल द पर्सन गाइड यू. जो थोड़े से बदलाव है वो मैं यहाँ पे आपको बताई कि पहले जो आपका प्रोजेक्ट मैनुअल है, इट डज नॉट हैव annexure 7. Now we want this annexure 7 where the qualification and work experience of the guide has been stated. हमें कोई उनके डिग्री के प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ खुद ही वो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो और स्कूल का स्टैंप है, दैट इज गुड इनफ फॉर अस. आप डिग्री उनकी लगाना चाहें, दैट इज ऑप्शनल. सो लेट मी कम टू द annexures. जो annexure 1A और 1B है प्रोजेक्ट मैनुअल, ये नहीं लगाने हैं. Instead of this, you have to put the revised annexures 1A and 1B, which are given in this additional guidelines. So these revised annexures 1A and 1B are a little more detailed. They are asking for your आपने ये सब काम किया, उसका थोड़ा डिटेल है वहां पे, इसलिए ये बदले गए हैं. So annexure 1A और 1B यहाँ से लेने हैं जो additional guidelines में है. Use the annexure 1A and 1B given in these additional guidelines. Discard the annexure 1A and 1B in the project manual, right? But annexure 2, 3A, 3B, 4, 5 and 6, they remain the same as in project manual. In fact, for annexure 6, I want to say, annexure 6 is that the regional center authenticate करता है कि आपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो ठीक है. But once you are following these guidelines, तो regional center वाला authentication का annexure भी जो है वो optional है. अगर आप इजीली करवा पाएं तो करवाएं, वरना कोई annexure 6 जो है वो कंपल्सरी नहीं है. However, all the other annexures are compulsory. Annexure 2 is your own background information. Annexure 3A and 3B are the marks जो आपको नर्सरी स्कूल टीचर लिखेगा. Annexure 5 is the checklist जो आपने, जिसके आधार पे आपने नर्सरी स्कूल ढूंढा है. और Annexure 4 में भी कुछ इंफॉर्मेशन है. Annexure 7 जो इसी गाइडलाइंस के साथ लगा हुआ है is the annexures about the educational qualification of and work experience. So annexure 6, I'm stating over here, I will state it also in writing in the project manual that annexure 6 is optional, जिसमें आपको रीजनल सेंटर से सर्टिफिकेट कराना है. इट इज नॉट नेसेसरी अगर आप बहुत दूर हैं और वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं. सो इट इज ओके, आपने अपने स्टडी सेंटर के लेवल पे उस चीज को बात कर लिया, अपने स्टडी सेंटर को दिखाते हुए वहां से आप ऑथेंटिफिकेशन ले सकते हैं. ये कंपलसरी है इन सभी अनेक्शर्स को लगाना, वरना द प्रोजेक्ट फाइल विल बी सेंट बैक. इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि जो गाइड के मार्क्स हैं दैट विल बी
गिवन 30% वेटेज, और इग्नू के जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे उसके 70% वेटेज है। आपको दोनों में ही पास मार्क्स लेने हैं। पास मार्क्स इज 35%। अक्रॉस द थिंग आपके मल्टीपल चॉइस और इन सब में भी जो टर्म एंड एग्जाम है उसका भी पास परसेंटेज 35 है, तीनों मल्टीपल चॉइस पेपर्स का। प्रोजेक्ट वर्क में गाइड ने जो नंबर दिए हैं उसकी भी पास परसेंटेज 35 है, और इग्नू एक्सपर्ट जो नंबर देगी उसकी भी पास परसेंटेज 35 है। आपको दोनों में ही यू हैव टू पास इन बोथ द मार्क्स। समटाइम्स द इग्नू एक्सपर्ट may feel that the guide has given marks beyond what was the work done by the student. इग्नू एक्सपर्ट को कई बार लगता है कि गाइड के मार्क्स स्टूडेंट ने जैसा काम किया उसके लिहाज से थोड़े ज्यादा थे, इन विच केस द गाइड मॉडरेट भी कर देते हैं अपने मार्क। सो जब आपकी प्रोजेक्ट इग्नू एक्सपर्ट मॉडरेट कर देगा। मॉडरेट का मतलब अगर उनको लगता है कि अपने कई बार फॉर एग्जांपल बहुत क्लियरली बोलते हैं कि मैं बहुत ही हाई 90-95% मार्क्स कई बार गाइड दे देते हैं, और इग्नू एक्सपर्ट्स को लगता है कि इतना काम तो नहीं हुआ कि 90-95% का मार्क्स था, तो वो परसेंटेज अकॉर्डिंगली अपनी तरफ से कम करने का उनका ये हक है। इसलिए आपको ये बात क्लियरली ओपनली यहाँ पे बताई जा रही। Submission of project file. So as I said, by the end, this is what your project file will be. 5 days of observation reports of phase 1, 30 activity plans and 30 reports of phase 2. Weeks curriculum of phase 3 और 15 से 20 activity plans and reports और annexures. Plus the pen drive अगर आपने YouTube पे upload नहीं किया है. So that I should write over here. Plus the pen drive जो अभी दिखा नहीं है मैंने. और अगर YouTube पे अपलोड कर दिया है और लिंक्स, तो आपके वो लिंक्स जो हैं दैट इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ द थिंग। प्रोजेक्ट फाइल आप हार्ड कॉपी में भेजेंगे। उड़ीसा के लर्नर्स के लिए हार्ड कॉपी जो है वो इग्नू नहीं भेजी जाएगी, वो आपके अपने रीजनल सेंटर में भेजी जाएगी, केवल उड़ीसा के लर्नर्स के लिए। बाकी सभी को हार्ड कॉपी जो है वो इग्नू हेडक्वार्टर भेजनी है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन। ये एड्रेस लिखा हुआ है मैंने। इस तरीके से आप डीईसी प्रोजेक्ट फाइल रूम 19 ब्लॉक 3 करते हुए इस पे जब आप भेजेंगे तो ये आपकी फाइल जो है ये यहाँ इग्नू हेडक्वार्टर आ जाएगी, पूरा एड्रेस। उड़ीसा के लर्नर्स को दोबारा से आपके रीजनल सेंटर से बताया जाएगा कि आपको फाइल अपनी कहाँ पे भेजनी है। सो कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि हमें किस उसमें हम फाइल लिखनी है, तो फाइल आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट इग्नू के साथ कोलैबोरेट कर रही है और उन्होंने उड़िया लैंग्वेज में सरकार ने मटेरियल को ट्रांसलेशन के लिए भी आदेश दिए हैं। तो उड़ीसा के लर्नर्स जो हैं वो अपनी मातृभाषा उड़िया में फाइल लिख सकते हैं। बाकी सभी लोग हिंदी और इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि हमारे पास जो इवैल्यूएटर्स हैं दे आर ओनली एबल टू रीड इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो फॉर द उड़ीसा there is a different thing because the government is has stepped in and is getting the required materials and evaluators in the Uriya language. अगर आप इसी साल अपना प्रोग्राम सबमिट करना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट फाइल 15 दिसंबर तक आप भेज दीजिए। और अगर आपको नहीं, विच मीन्स अगर आप 15 दिसंबर तक भेजना चाहते हैं तो माई वर्क शेड्यूल फॉर यू वुड बी दैट आप कम से कम 15 सितंबर तक यू स्टार्ट योर वर्क, विच मीन्स दैट आज से लेके 15 सितंबर तक आप DEC 1 पूरा पढ़ लीजिए। असाइनमेंट करते रहिए। असाइनमेंट को देना जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने के लिए। पढ़ते पढ़ते लुक फॉर अ नर्सरी स्कूल विच इज फॉलोइंग प्लेवे पेडागोजी अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट। जो अनेक्षर 5 में जो चेकलिस्ट दी है, प्रोजेक्ट मैनुअल के जो अनेक्षर 5 है उसके चेकलिस्ट को आप यूज करेंगे तो आप ये पता कर सकेंगे कि स्कूल जो है वो प्लेवे मेथोडोलॉजी है कि नहीं। अब चेकलिस्ट वहां स्कूल में ले जाके भरने वाली बात नहीं है। आप चेकलिस्ट घर से पढ़ के जाइए, आपके मन में रहेंगी क्या बातें हैं, और जब आप अपना पूछने जाए वहां पे तो आप एक देख सकते हैं और आपके मन में वो रहेगी। जब पॉइंट्स विल रिमेन इन योर माइंड एंड यू कैन ऑब्जर्व एंड सी whether this is a school which would be appropriate for doing the preschool. It is possible कि आपको 2-3 जगह पूछना पड़े before you get a yes, but do not get demotivated by that. So if you cannot complete project file by this, you can even give it later.
ऑनलाइन कुछ एक क्वेरीज आती हैं, कैन वी डू द प्रोजेक्ट वर्क वेयर द प्री स्कूल इज डूइंग ऑनलाइन? सो नो, ऑनलाइन प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना है, एक्चुअली वहां जाके ही प्रोजेक्ट वर्क करना है बच्चों के साथ, मार्केट वगैरह में ना जाइए, ये मैंने आपको बता दिया। ये रिवाइज एनेक्चर है 1 है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनुअल में नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये आपको मिलेगा। सो यहाँ प्रिंसिपल इज सर्टिफाइंग कि फला लर्नर केम विद अस फॉर फला डेज, इतने दिन के लिए आया और उन्होंने काम किया, उनका स्टैम्प और स्कूल, और जो गाइड है फिर वो भी सर्टिफाई कर रही हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, आपका काम देखा, आपने 30 एक्टिविटी प्लान्स किए, तो पूरा डिटेल में आपने वीडियो रिकॉर्ड किए, वो भी सर्टिफाई कर रही हैं, उनका सिग्नेचर। और 1 भी आपका अपना sorry ma'am, you just said that these formats are not available in the program guide, right? project manual mein they are not available. I will be sending these additional guidelines to each regional center by Monday or Tuesday and requesting the regional centers to upload it on their website so the students can download these. ये So that would be better, yeah. ये पहले भी होता आया है, so regional centers I think are aware, they do it, students इनको भर के देते हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनुअल जब रिवाइज होगी तो ये उनके अंदर चले जाएंगे, अभी रिवाइज नहीं है इसलिए ये बाहर है, सो दैट इज द रीजन। सो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन है लर्नर का, लर्नर खुद सर्टिफाई कर रहा है, एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन इज अ वेरी सीरियस थिंग, फॉल्स सर्टिफाई नहीं कर दीजिएगा, you have to give a truthful certification, so you are certifying that I have done all this work as stated over here. And this is the annexure 7 which I said about the educational qualification of the guide. It is once again self certification. अगर वो देती हैं कोई अपनी डिग्री रिपोर्ट तो दे दें, पर इसके जबरदस्ती नहीं है उनसे कि आप उनसे मांगे। All of it is self certification and we expect that the students are sort of सभी को लोग सच बोल रहे हैं और अपना ओरिजिनल काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। सो आई एम ऑलमोस्ट कंक्लूडेड। मुझे एक ही बात कहनी है कि मेरे ये सब बोलने के बाद अगर रीजनल सेंटर से आपको जो फाइनल गाइडलाइन अगर कोई आती है तो उसको मान्यता दीजिएगा, बिकॉज इन द एंड रीजनल कई बार हम जो सबमिशन हमारी गाइडलाइंस हैं वो कभी कभी चेंज हो जाती हैं, वैसे तो नहीं ही होंगी, but what I am saying is that about submission of project file or any other matter, if after this presentation you receive any other directive from your regional center, please follow that. For students of Odisha, हम दोबारा एक और आप लोगों के साथ अलग से भी आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सब कुछ सेम है सभी के साथ, किसी के साथ कुछ भी फर्क नहीं है। उड़ीसा लर्नर्स और राजस्थान लर्नर्स they are doing something separate, ऐसा नहीं है। there is only one very small difference between Odisha learners and rest of the learners, वो ये है कि because of the involvement of the honorable government of India, उड़ीसा का मटेरियल उड़िया लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है और स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं, इसलिए हम इवैल्यूएटर्स भी उनकी मातृभाषा में ढूंढेंगे, केवल यही फर्क है। बाकी सब कुछ जो भी मैंने बोला है, how to do the project work, how to submit it, number of project work, exam, counseling session, everything is the same across the whole of the country. The students across the whole of the country have to submit the hard copy of the project file along with the pen drive or with the link of YouTube video to IGNOU headquarters. Only Udiya learners will submit to the regional center. केवल Udiya learners अपने regional center submit करेंगे, जिसके लिए आपको दोबारा बाद में बता दिया जाएगा। So कोई ये ना सोचे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, there is no discrimination with anybody and all guidelines and all procedures are the same for everybody. That is why we are having a national induction. हम अलग अलग रीजनल सेंटर के साथ इंडक्शन नहीं कर रहे हैं, पूरे सभी स्टूडेंट्स के साथ इंडक्शन कर रहे हैं। and any student who has not participated and sees this video, all the things said now बाद में भी आप अगर देखते हैं तो यही चीज सभी के ऊपर लागू करती है। So Dr. Moni, over for me from the time being. Sorry, मैंने शायद ज़्यादा समय ले लिया। तो जी, actually we have to wind up by 1:30, but we can exceed a few minutes beyond that. That is not an issue. But the question is that Madam has familiarized all the web viewers about the program DEC और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में भी डॉक्टर प्रोफेसर रेखा शर्मा सेन ने बताया है। But a few things I can see as in the chat box that many students are raising many questions, और ये भी हो रहा है कि कई बच्चों ने लिंक भेज दिया है वहाँ पे विद्यार्थियों ने for a WhatsApp group.
So I would like to clarify that these WhatsApp groups are being created by the students, and IGNOU Regional Center or the SOCE or the Regional Services Division is not involved in the creation of those groups. तो अगर आप उस WhatsApp group के part बन रहे हैं, then it is absolutely your choice. We are not involved anywhere in forming those groups. अगर कोई ऐसी group बनती है तो वो आपको रीजनल सेंटर से पता चलेगी या फिर आपके स्टडी सेंटर से पता चलेगी. एंड बिकॉज नाउ दैट द प्रोग्राम प्रोफाइल एंड स्ट्रक्चर हैज बीन ब्रीफ्ड बाय द प्रोफेसर, because students have a lot many questions regarding the academic support that they are going to receive from the regional centers. So we will move on to the regional centers, and I would request first of all the regional center of Bhubaneswar, Dr. Vimal Nanda is there and Dr. Santosh Panigrahi is there, to please briefly talk about the academic support and what the students should expect from regional center regional center Bhubaneswar, and that will be followed by Dr. Abhilash Nayak at regional center Angul. Your microphone is on. Namaskar. RC Bhubaneswar has already communicated all the students, and also you had sent the assignment question to all of the students. Also, we had sent, the soft copy to all the students. So, 50% students have received the hard copy, and some students are giving complaints they have not received the study material. So, due course of time, maybe they will get the materials. And about the student support service, so, today we had planned for the induction meeting. So, wherever the students are coming to us, so you tell them they will submit their assignment to the concerned study center. So that is not a big issue, but the number is near about 26,000. So it's a huge amount of the students is there. So we are just trying to increase our empanelment of the academic counselor. So we will take part of that. I do think that's not a big issues for maybe issues, but we'll resolve that. And the big issues is that the practical and project part. So what the ma'am has narrated about the project. How they will find out the guide and how they will choose the school and how you will evaluate the project. So that is a concern for us. But due course of time, you will do that. And regarding that, the examination, ma'am has already narrated that the objective question they will give it. So that is not a big problem. I do think so. And other than that, whatever the students need the support from RC Bhubaneswar, so we are ready to extend our support to them. And regarding that transfer the material, it's going on. There is some difficulties, but we will work out on that. How it is resolved on that. Regarding that message transition. So I think it's not a big issue for that. We are trying to resolve all the problems. So RC Bhubaneswar is all the times is giving support to the students, and regarding this DEC students, so we will check out the plan, how we will resolve the problem, and how smoothly you will give support service to students, and they will complete the program within the stipulated time. This much from RC Bhubaneswar. Thank you. Dr. Vimal, would you like to add to what Dr. Santosh has said? Thank you, Dr. Moni. In fact, I think you can use the Odia language, but because most of the students who are... Thank you. So that will be the only addition I will make to Dr. Panigrai's version. So, प्रिय विद्यार्थीगण, इग्नोरे जॉइन कर समस्त को अभिनंदन. इग्नो होचे पृथ्वीर सबुठु बड़ विश्वविद्यालय, ना कि केवल तार टेरिटोरियल एरिया जो कवर करछ सेतरे एटा सबुठु बड़ लर्निंग कम्युनिटी इन द सेंस सबुठु बेसी स्टूडेंट इग्नो रे अछंती एवं सबुठु बेसी जुरिस्डिक्शनल एरिया पृथ्वी रे इग्नो कवर करछि. तेणु दुईटा सेंस रे इग्नो होछि सबुठु बड़ यूनिवर्सिटी. आ आमे समस्ते प्राउड फील करबा कथा जे आमे वर्तमान इग्नोर विद्यार्थी. मु समस्त को एति पई पुणी थरे अभिनंदन जणाउछि. आमको इग्नोरे पढ़िबार किछि फ्लेक्सिबिलिटी मिले. गोटे अछि इग्नो अछि फ्लेक्सिबल कोतरे मुक्त इग्नोर गोटे
स्पेस दिया गोटे टाइम टाइम रे मुक्त स्पेस रे मुक्त आपन को कौन सी निर्दिष्ट समय नहीं जो आप इग्नोर पाठ पढ़िए आप निज सुविधा अनुसार जिते दिन में टाइम बाहर करके पढ़ी पारे स्पेस किसी क्लासरूम ना जो आपन को बाध्यबाधकता आसवाक पड़ो जो आपन पढ़ा पड़ो आपण माने कोउठ भी निजर आपण निजर ऑफिस रे निजर घरे जोठी भी समय पाइबे आपण पढ़ी पारिबे तीन नंबर पेस ऑफ लर्निंग आपण निजर निजे केते पाठ पढ़ी पारिबे दिन को आपण को निजर प्रोफेशनल परिस्थिति अनुसार निजर घर परिस्थिति अनुसार आपण डिसाइड करिवे और आपण निजर से अनुसार आपण से समय निर्धारण करि पारिबे स्पेस निर्धारण करि पारिबे को पेस से आपण सिखिबे सेटा मध्ये आपण मन सिखि पारिबे जेमति मोर कलीग डॉक्टर संतोष पांगे सर कहले जे आपण माने समस्त को आमे ईमेल रे असाइनमेंट क्वेश्चन पठे देछु इग्नोर जो हमर असेसमेंट अछि आमे परीक्षा जो करू दुई प्रकार गोटे अछि कंटीन्यूअस असेसमेंट जोतरे आमे आपनकर घरे आपण असाइनमेंट देबे असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर करके हमको रीजनल सेंटर को पठेबे हम पास आपण सार कहले स्टडी सेंटर दे आपण माने अध्ययन केंद्र रे देबे निजर स्टडी सेंटर असाइनमेंट देबे तार होची 30% वेटेज 100 रु 30 मार्क आपनकर सेतिरे वेटेज रहइबो बाकी 70% जो वेटेज आपन माने परीक्षा केंद्र रे आछि परीक्षा हॉल रे परीक्षा देबे मैडम जेमति बतेले परीक्षा हॉल रे आपनकर क्वेश्चन पेपर गुडा को आपन को मल्टीपल चॉइस रे रहइबो एस जो असाइनमेंट जो माने चाहिबे से माने आंचलिक केंद्र को मध्ये पठै परिबे स्टडी सेंटर रे भी दे पारिबे आंचलिक केंद्र को मध्ये दे पारिबे एटा केवल ओडिसा पिलांग पे एवं आपण मानकर जो एग्जाम रे हबो एग्जाम ता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे हबो एवं क्वेश्चन गुडा को एनालिटिकल रहइबो तो आपण मान को अनुरोध जे आपण बही गुडा को प्रांजल भाव रे पढिबे तापर क्वेश्चन थिंक करिवे भाबिबे हेले आपण कोन एग्जाम रे योर सक्सेस रेट विल बी हाई आपण निज सक्सेस रेट हाई कर पारिबे काहे केवल एतरे आपण सब्जेक्ट एसे टाइप क्वेश्चन आसीबनी मल्टीपल चॉइस रे आपण मान आंसर करिवे तो से अनुसार प्रिपेयर करिवे एई भले आपण को आ गुडा होची प्रोजेक्ट वर्क किमती मैडम कहले प्रोजेक्ट वर्क पई आपण को गाइड के हे पारिवे गाइड करो तांकर योग्यता कोन रहइबो जो 8 पेज रे जो डॉक्यूमेंट मैडम कहले से डॉक्यूमेंट रे दिया है ताको आपण माने पढिबे मैडम जो अनेक्सर कहले से अनेक्सर गुडा को मध्ये आपण देबे मैडम आपनको हमको जते अनेक्सर पठेबे हम आपण मन अनेक्सर पठेबु एवं आपण माने समस्त से अनेक्सर को निहाती भाव रे फॉलो करिवे निहाती भाव रे ऐड करिवे जेमिति वीडियो करबा को कहा है सेमिति वीडियो करिवे वीडियो करला लोक आपण माने स्कूल रो कर्तृपक्ष को देखै परिबे जे आपण कोन वीडियो करले थाले कोन हबो आपण को प्रति समान को मन भीतर कोन से संदेह सृष्टि हबो नाही एवं काम सुचारू रूप रे रहइबो आपण मन को जहां भी असुविधा हबो ए क्षेत्र रे आपण इग्नो आंचलिक केंद्र भुवनेश्वर हो अनुगुल हो अबा कोरापुट आपण माने निजर आंचलिक केंद्र को जोगाजोग करि परिबे एवं भुवनेश्वर आंचलिक केंद्र आपण समस्त को स्वागत करियो कोनसी प्रकार प्रॉब्लम पई एवं मु भाबुची आपण को समस्त करी हमें एड्रेस करछु हमरो इग्नो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर रो आंचलिक केंद्र रो ईमेल आईडी मु आपण मान को दउची कांटेक्ट आईडी दउची आपण मान सेत्र जा असुविधा आपण कांटेक्ट करिवे आईग्राम रे मध्ये कांटेक्ट करिवे जहां भी आपण कर असाइनमेंट क्वेश्चंस अछि इग्नो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर तरफ ताके ईमेल रे पठे दी जाईची आमे मान ताको आरसी रीजनल सेंटर रो वेबसाइट मध्ये अपलोड कर देबो जो अनेक्सर आसीबो ताको मध्ये अपलोड कर देबो तेनु आपण माने इग्नो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर वेबसाइट को निहाती भाव रे मझे मझे अवलोकन करथबे एवं आपण समस्त को ऑल द बेस्ट मु इग्नो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर कोरापुट इग्नो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर कोरापुट एवं अनुगुल रो रीजनल सेंटर रो एड्रेस आपन को एटी चैट बॉक्स में टाइप कर दोछि काइंडली नोट कर नियो थैंक यू डॉक्टर धन्यवाद और अब ब्रीफली मैं रिक्वेस्ट करूंगी रीजनल सेंटर अनुगुल से डॉक्टर अभिलाष नायक सर को कि वो भी अगर अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो बता दें फिर हम लोग रीजनल सेंटर जयपुर राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे Thank you, ma'am, for the invitation. I am personally thankful to Professor Rekha Sharma Sen, ma'am, for having clearly told all of us about the structure of the program and what the learners are supposed to do. जेमती आमर नंदा भाई कहते जे आमर बर्तमान मैडम जो प्रोफेसर रेखा शर्मा सेन अपन सब हिंदी रे बुझी पारथुए मैम इंग्लिश रे स्लाइड देखि कि हिंदी रे सब बुझेइछंती हमकु
and there are a couple of things which I would like to insist on जोटा कि पिला माने मन रखिबा दरकार प्रथम हला assignments जोटा अन्य सब assignment भलिया एटी assignment there are three components प्रथम component हला theory बही को देखिबा बही पढ़ी की आमे सेथुर आंसर तयारी करिबा तार पार्ट बी एवं पार्ट सी दिटा जाक हमर तो प्रैक्टिकल मैनुअल रहिछि सेथुर नै कि आमे तयारी करिबा so that is number 1 सब स्टूडेंट मानको अनुरोध रहिला please note it down your assignment has three components part 1 is theoretical and part 2 B and part C they are practical now and you will have to follow the book given to you for preparing the assignment that is number 1 number 2 the last date for submitting the assignment is usually 30th of September unless it is extended जदि एक्सटेंशन हबो ताले बढ़ी पारे डेट किंतु 30 तारिख भितरे आपण मानको असाइनमेंट जमा करिवार अछि प्लीज डाउनलोड द स्टडी मटेरियल्स in from the website if you haven't downloaded them yet जदि असाइनमेंट जदि पाइना हो ताले प्लीज हमर उटे टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कराइछि फ्रॉम आरसी अंगुर which can accommodate 10,000 students and in the group ma'am we have given everything that the learners need and I have asked my staff to give the link for the videos give the link for the study materials give the link for the assignments so that the learners don't face any trouble in that SMS facility also we have so we will also be communicating with you for all important information regarding that and regarding project work I am thankful to SCD for wonderfully integrating the video component when ma'am I was monitoring the activities under UNICEF Odisha we used that methodology we recorded the videos for the review of the class sessions that the learners that the teacher participants did so we would that is a wonderful initiative by the school I have all respect for the school for initiating this thing and the third thing we are thankful to the honorable vice chancellor and government of Odisha for having decided to collaborate to translate the study materials of DEC program into Odia. That will be a boon to the students of Odisha because they are neither conversant with English nor conversant with Hindi because they are all +2 people. That's the thing and I request all the learners through this medium समस्त को मोर अनुरोध रहिला we are the caretakers of the future generation हम मानको पाखरे गोटे बहुत बड़ दायित्व दिया जायछि we will be taking care of 45,000 students admissions in Odisha means it is a great number that means nearly at least 4,50,000 students if we calculate them 10 students per teacher that comes to 4 lakh. That means all these students will be under your care and guidance the program is beautifully planned there is nothing which is left out mane how the children experience in their childhood what are the different kinds of development that we need to take care of what are their nutritional needs what are their health needs what are the different kinds of differently abled children how to deal with such students what are the needs of the students with the special needs and how to organize and maintain the activities at the child care centers. So thank you very much ma'am for giving such beautiful presentation on the program. I am thankful to RSD and the school and the university authorities for having organized this program. I am thankful to Dr. Ranjita Panda in charge RSD and Dr. Manish Rai RSD for facilitating the discussion with the regional centers. Thank you all very much. Namaskar. Thank you, sir. Thank you so much. Dr. Latika from RC Koraput, would you like to briefly add something about the academic support from RC Koraput to the students of DECE? Okay, Please thank be you, very ma'am. brief. Sabhi ko namaskar. Please be brief because we are running short of time. Thank you. Okay, ma'am. From Regional Center Koraput, ma'am, this time we have around 9,841 students. They have taken admission in January 2025. Initially, we arranged induction meeting after completion of admission session, and we arranged the meeting through offline at the study center level as well as from regional center level. We arranged special meetings
for each and every study center and particularly for the DC learners through online. Besides that, after that, we share the assignments to all the learners through mail and also the program guide, and all the assignments and program guide also uploaded in RSU website. Further, we arranged, particularly even after that also, we are every day we are getting the phone calls and mails from the students. So we arranged grievance meetings. 3 meetings already we conducted in the July, and we are planning to have separate meetings for the DC learners to explain each and every component every day. Weekly once we are arranging those meetings. So these are the activities we arranged from Regional Center Koraput. Besides that, initially under Regional Center Koraput, we had 2 approved academic counselors, but today, as of today, we have 12 approved academic counselors, and we are also trying to arrange more academic counselors. And we have already asked the study centers to arrange the counseling sessions from first week of August. Only we will arrange counseling sessions for each Sunday so that the learners can participate in those counseling meetings. Besides that, after this meeting, we will arrange similar kind of Facebook live sessions, and we will share, because each and every component, Professor Rekha Sharma explained each and every component so beautifully in a simple way, and we will arrange those things in Odia so that the learners of this region, they will get, we will clarify many of their doubts. And one more, the already Abhay sir and Nanda sir already discussed with our students. The project report, if the project report they will submit in Odia medium, that is a great help for the students of this region. Because ma'am, in this region, particularly in Koraput Regional Center, most of the students of this region, they are from tribal belt. And they can submit in Odia version. They can submit. We will have to identify evaluators in Odisha for the Odia version. That is all. Thank you. Thank you. Please tell them. Assignment also can be done in Odia language. Okay, ma'am. That's a great help for the students of this season. So we will arrange accordingly different kinds of Facebook live sessions to clarify the doubts of the students. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Latika. That was very nice of you. And in fact, you can always, even the regional centers can have their own Facebook live sessions to provide academic support to the students, because the students are huge in numbers. So that is very good. Thank you. And now we move on to the regional centers of Rajasthan. First of all, Regional Center Jaipur, followed by Regional Center Jodhpur. So it's over to you, Dr. Mamta Bhatia, Madam, Senior Regional Director. I know you have a bad throat and sore throat, so probably you will not be able to speak. So then I request Dr. Indu Ravi, Deputy Director over there, to please continue briefly. Thank you. नमस्कार सभी को, रिस्पेक्टेड ऑल सीनियर्स। मैं ये बताना चाहूँगी कि जुलाई 2024 सेशन में हमारे पास 23,562 लर्नर्स एडमिटेड थे इस प्रोग्राम में, और जनवरी 2025 में 31,441 learners have been admitted. So looking into this huge enrollment, बाकी तो guidelines मैम ने provide कर दी हैं, but I would like to inform our learners कि जो new assignments हैं, ये हम सारे students को email के through और जो link है इन assignments की हम students को provide कर देंगे उनके स्टडी सेंटर्स को, और अगर कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी सेंटर्स के बने होंगे तो उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन उन लोगों को चली जाएगी। जो काउंसलिंग सेशंस पिछले सेशंस में हम लोगों ने कराए थे, उनके लिंक्स रीजनल सेंटर जयपुर की जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स वो भी देख सकते हैं। और अब जो नए होम करवाएंगे वी विल अपलोड ऑन द यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो न्यू रिवाइज्ड गाइडलाइंस प्रोजेक्ट की मैम ने बताए हैं, as far as I understand, these will be applicable to the students of January 2025 onwards. No, ma'am. No. I just want to do a correction. ये guidelines पिछले 4-5 साल से हम भेज रहे हैं। पहले इन guidelines में कोविड का भी कंपोनेंट था, वो हट गया है। तो ये गाइडलाइंस अभी भी पुराने स्टूडेंट अगर कोई हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क नहीं कंप्लीट किया, इवन जुलाई 24, जनवरी 24, it is applicable to everyone. These guidelines have been there since the COVID times. Okay, the annexures, new annexures which have been added have been there. Okay. Yes.
So the new annexures which have been added in the new additional project guidelines, they will be applicable to all learners who will be submitting their projects for December 2025 session onwards. तो सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए। और जो न्यू प्रोजेक्ट गाइडलाइंस हैं ये रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट पर हम लोग अपलोड कर देंगे ट्यूसडे तक, जैसे ही मैम इसको भेजेंगे। एंड दीज प्रोजेक्ट गाइडलाइंस वी विल आल्सो सर्कुलेट टू ऑल द स्टडी सेंटर्स, टू स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं। इसमें मैं बस एक ये लाइन इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वी हैव आल्सो रिटन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू अ लेटर for the Anganwadis where such large number of students they want to complete their projects, तो वो अपनी एक्टिविटीज के लिए अगर ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है हमारे पास तो इमीडिएटली हम ये सर्कुलेट कर देंगे सारे स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए ये सुविधा हो जाएगी कि वो अपनी प्रोजेक्ट के लिए इन आंगनवाड़ी केंद्र पे कांटेक्ट कर सकते हैं। And for all their queries, we are replying through email. Student grievance redressal session हम लोग every Thursday 4 to 5 करते हैं और Facebook live sessions भी इस सेशन से स्टार्ट कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज हैं इस सेशन के बाद भी वो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर rcjaipur@ignou.ac.in पे ईमेल लिख के उनको जवाब मिल जाएगा। लास्ट में मैं बस इतना ऐड करना चाहूँगी क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर परचेजिंग द प्रोजेक्ट्स, और बहुत से ऐसे सोसाइटीज़ कह सकते हैं या शॉप्स अवेलेबल हैं, इवन ई मित्र पर भी people are selling, तो all students are requested not to purchase such projects। वो हम लोग के पास भी आते हैं कि मैम ये देखिए ये मैसेज आ रहा है कि हमको खरीदना है यहाँ से, तो कोई भी परचेज नहीं करेगा। इग्नू डज नॉट आस्क फॉर मनी एट और कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको खुद ये प्रोजेक्ट्स बनाना है, जैसा कि मैम ने बताया है, आप ये एक्टिविटीज करें और फिर अपना प्रोजेक्ट्स एज पर गाइडलाइंस सबमिट करना है। मैम यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ लर्नर को, अगर आप कॉपीज मार्केट से खरीदा हुआ प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप मार्केट में तो पैसा दे ही रहे हैं। हाँ। जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ से रिजेक्ट होगा और आप दोबारा प्रोजेक्ट भेजेंगे तो आपको 1200 रुपए यहाँ पे फिर से जमा कराने पड़ेंगे। यस, दैट इज ऑल्सो आपके इसी फीस जितना भी काम आप रिपीट का होगा उसके लिए नए सिरे से आपको दोबारा पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो इस बात के लिए आप बहुत क्लियर हो जाइए कि कोई भी कॉपी केस इग्नू में क्लियर नहीं हो पाता है। प्रोजेक्ट मार्केट का 2 स्टूडेंट्स का इकट्ठा मिला हुआ क्लियर नहीं हो पाता है जी। तो ये क्लियर गाइडलाइंस इन लोगों को देना चाहते हैं कि परचेज बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि जो सेल कर रहा है वो ही प्रोजेक्ट 5 लोगों को सेल करेगा और वो 5 स्टूडेंट्स फिर फेल होंगे एंड यू विल हैव टू रिपीट। और लास्टली अपना प्रोजेक्ट प्लीज लास्ट सेशन के लिए वेट मत करें। मैक्सिमम ड्यूरेशन जैसे 3 साल होता है तो लास्ट सेशन में कम से कम उसको सबमिट नहीं करें। दे कम इन द लास्ट मंथ की अब ये जून सेशन है, ये हमारा लास्ट सेशन है, कर ले, तो उसमें डिफिकल्टी आती है। प्लीज ट्राई टू कंप्लीट 1 session before. So that is all. Ma'am, is there anything else required? Mamta ma'am? हिंदी में भी हम गाइडलाइंस डाल देंगे। हाँ, इंग्लिश हिंदी जो भी दोनों लैंग्वेजेस में हम लोग ये गाइडलाइंस अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर और सब स्टूडेंट्स को भी सर्कुलेट कर देंगे, तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ड्यूरिंग इंडक्शन मीटिंग्स फॉर जुलाई 2025 ऑल्सो वी विल टेल एवरी स्टडी सेंटर वेयर वी विल गो कि ये न्यू गाइडलाइंस, मॉडिफाइड गाइडलाइंस और एडिक्शंस यूज करने हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। Thank you, Dr. Indu Ravi. And now RC Jodhpur. RC Jodhpur, can you please throw some light on the academic support being provided from RC Jodhpur? Yeah. Sorry. Good afternoon. You are not very audible. I'm not very audible. Yeah. Now it's better. Please continue. Okay, fine. First of all, good afternoon to everybody, and I extend my gratitude to RSD and school that they have organized such a Facebook live session so that students should gain from it. आई वुड लाइक टू, मैं हिंदी में बात करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मैडम नॉर्थ इंडिया से बिल्ड से है बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ पॉइंट्स में अपनी बात रखता हूँ। ये आरसी जोधपुर की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी सिटी से काफ़ी रिमोट एरिया में है,
तो जिसकी वजह से हमारे बच्चों को जो है स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने में बहुत तकलीफें होती है। तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द आप सिटी सेंटर में जो स्थित हमारे स्टडी सेंटर्स है, महिला पीजी, खासकर जोधपुर सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, महिला पीजी और जीडी मेमोरियल, यहाँ से आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर पाएंगे बहुत ही जल्दी। आपको वैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कब कलेक्ट करना है। तो ये आपकी स्टडी मटेरियल की दिक्कत, जो ट्रांसपोर्टेशन वाली दिक्कत थी, वो तो हमने सॉल्व कर दी है। सेकेंडली, हमारे एक कोऑर्डिनेटर ने, जो कि काउंसलर भी है, वो उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है डीईसी के प्रोग्राम पर, वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, उसे आप जरूर देखिए। फेसबुक पे अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसे देखने के साथ साथ अगर आप वो भी देखें तो आपको बहुत मदद मिलेगी। थर्ड थिंग इज दैट कि असाइनमेंट्स जो है हम हमारे आरसी जोधपुर के वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्रोग्राम गाइड भी हम लोग अपलोड कर देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे और आसानी से आपके असाइनमेंट्स बना पाएंगे। जो कि मैडम ने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि आपको डीईसी 1, 2, 3 इन तीनों को तीनों के असाइनमेंट्स प्रॉपरली वक्त के पहले 30 सितंबर के पहले बना के आप रीजनल सेंटर भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम ईमेल पर आपके सारे क्वेरीज का जवाब विदिन 3 वर्किंग डेज दे देते हैं, चाहे वो कितनी भी न्यूमरस हो, ठीक है। इसके बाद में मेरी आपसे गुजारिश है आप सभी से कि आप रीजनल सेंटर जोधपुर का टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी पर हम लोग सारे अपडेट्स डालते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही आपको ये रहेगा फिलहाल रिक्वेस्ट। इसके बाद में जब भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर बुधवार को हम 3 बजे लाइव प्रोग्राम करते हैं, जिसमें आपकी क्वेरीज सॉल्व होती है। तो प्लीज वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मेरी तरफ से इतना ही मैडम, थैंक यू। Thank you, sir. So we have completed with the regional centers, and I think it was very informative because generally study center is the first contact point for students for all programs in the open and distance learning mode, which is followed by the regional center. तो रीजनल सेंटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, और आपने देखा होगा कि प्रोग्राम के दौरान 5 रीजनल सेंटर्स की ईमेल आईडी हमने डाल दी है चैट बॉक्स में। और इसके अतिरिक्त यदि आप किसी और रीजनल सेंटर से हैं, इन 5 रीजनल सेंटर्स के अतिरिक्त किसी और रीजनल सेंटर को बिलोंग करते हैं और आपने डीईसी में एडमिशन लिया है, तो आप अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एकेडमिक सपोर्ट और एनी काइंड ऑफ क्वेरीज दैट इज अराइजिंग इन योर माइंड। देयर आर सम क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, हालांकि मुझे लगता है इस पे डिस्कशन हो चुका है, बट रेखा मैडम, इट इज फॉर यू टू आंसर आई गेस। फर्स्ट इज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट सबमिशन डेट, and second is regarding the availability of project manual. Where is the project manual is available? Yes. So if you would like to answer these questions. Yes. So project manual has not yet been, I think it has been dispatched to about 20,000 students till now. For the students from Odisha, Odisha के students को अलग से उड़िया में translated project manual उनके regional center द्वारा provide कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। और बाकी सभी स्टूडेंट्स को जिनको अभी तक मैनुअल, जिन्होंने हार्ड कॉपी ऑप्ट करी थी, उनको मैनुअल भेजने के प्रोसेस में है, पहुंच जाएगा आपको। और जब तक आप नहीं तो ई ज्ञान कोश से मैनुअल को डाउनलोड कर लें। मेरी स्लाइड में ई ज्ञान कोश का लिंक था, वरना आप अगर ई ज्ञान कोश को एक्सप्लोर करते हैं, वहां प्रोजेक्ट मैनुअल डीईसी डालते हैं तो वो मैनुअल आ जाएगी। और ये जो रिवाइज गाइडलाइन, एडिशनल गाइडलाइंस है जिसमें एनेक्शंस वगैरह हैं, ये आपके रीजनल सेंटर में ट्यूसडे तक पहुंच जाएगा। तो रिपीट कर रही हूँ, 20,000 स्टूडेंट्स के लगभग पीपल हैव द प्रोजेक्ट मैनुअल। Those who do not have the project manual, it will soon be dispatched to you. Till such time, please download it from the eGyan Kosh and just read it. It's a 100-page book. And for the Odisha learners, translate हुई project manual आपको जल्दी ही मिल जाएगी अपने रीजनल सेंटर के द्वारा। तब तक अगर कोई उड़ीसा के लोग भी, अगर आप लोगों को लगता है कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं, तो हिंदी वाली प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़ के देख लीजिए, जिनको अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थैंक यू। और जब जैसे कि मैं बोली हूँ, उससे पहले आप लोग सभी DEC 1 पढ़िए। यू हैव टू स्टडी DEC 1
without which doing the project work will be very difficult. Okay, ma'am, there is another question. The student is asking कि project इन्होंने English में बना लिया है, and is it allowed to make the video in any regional language? मैडम क्वेश्चन में ही तो पड़ा हुआ है ना कि कैसे मुश्किल है. मुझे बताइए कि अगर आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया, मतलब मैनुअल नहीं थी, आपने कैसे बना लिया, और प्रोजेक्ट की एक्टिविटी तो हैज टू कॉरेस्पॉन्ड विद योर वीडियो, तो वो कैसे होगी? अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया है पहले, तो मतलब आपने काम कर लिया है बच्चे के साथ. अब आप कैसे उस काम को दोबारा कैसे दिखाएंगे? तो यानी अब आप नया कुछ और काम करेंगे, तो जो काम करेंगे फिर उसी का मैनुअल बनाइए. और आई डोंट नो, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आया मुझे. मतलब बेसिकली ये है मैम कि अगर इन्होंने अपना वीडियो रीजनल लैंग्वेज में बनाया है तो प्रोबेबली इनको अपना प्रोजेक्ट भी उसी लैंग्वेज में सबमिट करना होगा. इज इट लाइक दैट और लाइक? नहीं, इसमें एक बात है, देखिए, इट इज पॉसिबल स्टूडेंट, आप जब जहां पे भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस उम्र के साथ, आपको बच्चों की मातृभाषा में ही उनसे बात करनी चाहिए, राइट? बट आपको अगर हिंदी और अंग्रेजी लिखनी आती है तो आप उसी में ही लिखेंगे, बिकॉज मातृभाषा में तो हम प्रोजेक्ट मैनुअल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट इन उड़ीसा. सो आप बच्चे के साथ उनके रीजनल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, तो आपका वीडियो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज में होगा, इट इज ट्रू. बट आपका जो मैनुअल है वो हिंदी और इंग्लिश में ही लिखा हो तो बेटर है. मेरे ख्याल में इस केस में इफ ऑल योर एक्टिविटीज आर सो मच इन द रीजनल लैंग्वेज कि इग्नू का इवैल्यूएटर नहीं समझ सकता है, तो अपने उसी वीडियो में उस 5 मिनट की एक्टिविटी का कुछ 2-3 मिनट का हिंदी या इंग्लिश में वर्बल डिस्क्रिप्शन साथ में दे दीजिए. बिकॉज सपोजिंग इफ इट इज मलयालम और सम लैंग्वेज एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे, then it is better that you give a short explanation of what you did in Hindi or English immediately after your activity in that same video, so that we understand the video. I think that is probably the question. And if the question was कि मैंने already अपना काम कर लिया है और अब मैं project I forgot to make the videos and now can I make a video and do the work now? So to that my reply is that if you did the work earlier and did not make the video, please do the work again. Please do the activity now. Take the video now and write that activity as your project report. So आपकी क्या सिचुएशन है आई डोंट नो. आई थिंक सारी सिचुएशंस को हमने कवर अप करने की कोशिश की. एक क्वेश्चन और, आई थिंक वील टेक दैट क्वेश्चन. वन स्टूडेंट इज आस्किंग दैट वेदर गैप इज अलाउड फॉर पर्सनल रीजन डिक्लेयर्ड स्कूल हॉलीडेज और नॉट. या सो बाय गैप आई मीन आइदर शी वांट्स टू या सो यू नो डिक्लेयर्ड स्कूल हॉलीडे 1-2 दिन की होती है, वो तो आपको सभी को ही लेना पड़ेगा. मान लो आप कुछ भी आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, व्हाटएवर, आप बीमार पड़ जाते हैं, दैट इज एन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस, ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो, बट डू नॉट प्लान टू डू द प्रोजेक्ट वर्क विद ब्रेक्स. समझ रहे हैं? दोनों चीज में डिफरेंस है. प्रोजेक्ट वर्क को सीरियसली लीजिए, कुछ ऐसा समय निकालिए कि आप 30 दिन लगातार जा पाएंगे. घर में मान लो कोई शादी होने वाली है और आपने ठीक शादी से पहले प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया और अब आप 10 दिन तक नहीं गए, ऐसा टाइम मत करिए. पर हाँ, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो गया, आप बीमार पड़ गए, ये तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता. एंड नॉर्मल छुट्टीज आर छुट्टीज. और मान लो छुट्टी का भी हमें पता है, मान लो नवरात्रे आपके यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, 10 दिन किसी ने काम करना ही नहीं है, मान लो स्कूल में छुट्टी है, तो उससे 4 दिन पहले प्रोजेक्ट वर्क आप क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि बच्चे तो आपको भूल जाएंगे. व्हाट इज द आइडिया दैट यंग चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू वर्क विद स्ट्रेंजर्स. व्हेन द 5 डे आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्कूल में, तो आप बच्चे आर गेटिंग यूज्ड टू यू. If you now give a 10-day break and do not appear in front of the children, again they will hesitate to do activity with you. You will not get their good response. This is the idea. If you understand the logic behind things, you will yourself be able to plan things in a better way. Ma'am, because more than 1,000 students were watching this program, and now also we have around 700 students watching the program. So 2 questions more I would like to take, because it will be in the benefit of all students. So first is like one student is asking that how can we upload our videos, and the second question is regarding permission. एक student ये लिख रहे हैं कि स्कूल से उनको परमिशन नहीं मिल रही है
प्रोजेक्ट करने के लिए। तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे देते हैं स्टूडेंट्स को। हाँ, सो देखिए, एक तो मैंने बोला ही है कि आपको शायद 2-3 स्कूल्स में जाना पड़ सकता है, राइट? एंड यू हैव टू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वन थिंग विच कैन हेल्प यू विद द परमिशन इज अपनी स्टडी सेंटर से आप एक कोऑर्डिनेटर से लेटर हेड पे ये ले सकते हैं दैट यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इग्नू and that you will be working in this thing for 30 days and that no part of your work will shared with anybody else except for evaluation purposes. ऐसे करके आप एक चिट्ठी अपने लेवल पे अपने कोऑर्डिनेटर से लिखवा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट इज दैट यस इट इज पॉसिबल आपको 2-3 जगह पे जाना पड़े। तीसरा, एज आई टोल्ड यू कि इट इज अबाउट द वीडियोस, सो आप ये स्कूल को कह सकते हैं कि देखिए वीडियो बना के मैं पहले to be publicized in any way, so this can help you. So some people do experience difficulty, I understand and I agree with that, but usually people are able to find. Now the second point was about how to upload the YouTube. So actually it is a simple process, but मतलब extempore मुझे भी नहीं आता है, but it is not a very difficult thing to upload things on the YouTube. Many years ago I uploaded some personal information. हाउ टू अपलोड थिंग्स ऑन यूट्यूब पे जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ वो ये कि आफ्टर अपलोडिंग यू क्लिक दैट इट इज टू बी व्यूड ओनली प्राइवेटली, विच मीन्स जिसके पास आपका लिंक होगा वही ही देख सकता है, विच मीन्स हमारे सिवा कोई और नहीं देख सकता है। अगर आपको पब्लिक अपलोडिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो प्राइवेट भी यू डोंट हैव टू क्लिक। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन टेकन, और कुछ जो सवाल है जो चैट बॉक्स में दिख रहे हैं मुझे, ये जनरल क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि अभी रीजनल सेंटर्स ने बताया और मैडम ने बताया स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन से, कि जब आप एक बार अपनी प्रोग्राम गाइड को पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको कोई और सवाल है आपके मन में, कोई और दुविधा है, तो आप अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर रीजनल सेंटर का अपना वेबसाइट है, तो आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाके, रीजनल सेंटर के ऑफिस में जाके आप संपर्क करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। I think we are almost nearing to the conclusion of the program, and I would just request very briefly if any regional center has to say something or to add something to the program. Otherwise, we will conclude. Very briefly. Just I wanted to tell one thing to my learners in Odia. हमर जो परीक्षा हबो डिसेंबर जो परीक्षा हबो, द परीक्षा रे जो क्वेश्चन आसीबा हमर 3टा पेपर जो DEC 1 DEC 2 DEC 3, तो 3टा परीक्षा हबो सेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे आसीबो, नॉट इन डेस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जिमते आगुर जिमते होतला सेमते हबने। सेटा मु दैट आई मिस्ड आउट। हमरो नंदबाबू टिके रेफर कले ताको कि मु भाबी ताको क्लियरली कहबा दरकार। एवं मु स्टूडेंट मान को अनुरोध करिबी व्हाइल गोइंग थ्रू द मटेरियल्स, काइंडली प्रिपेयर योर ओन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। निजे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब बने कि ताको प्रिपरेशन आरंभ करो, सो दैट कि यू विल बी एबल टू डू इट। माने परीक्षा करे हम सक्सेसफुली ताको हम कंप्लीट करि परिबा। एंड लास्ट रिक्वेस्ट जोटा कि डॉक्टर मनी ऑलरेडी हैज सेड दैट कि ट्राई टू कंप्लीट द प्रोग्राम इन टाइम, दैट्स माय रिक्वेस्ट। क्योंकि इन डिस्टेंस एजुकेशन दैट इज द प्रॉब्लम, एंड सिंस योर नंबर्स आर मोर, you will have to be really serious about completing the program. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. In fact, I think the students, yes, Ranjita ma'am from the Regional Services Division. Thank you, Dr. Moni sir. Just I would like to say one sentence to our Odia learners, and नमस्कार सभी को. आज संबलपुरी डे है, तो आज जितना भी हमारा लर्नर्स है, आप सभी को ओडिया में बोल रही हूँ, संबलपुरी दिन आदि आए, तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिया में इसीलिए मैं बोली हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू उड़ीसा। और यहाँ जितना भी उपस्थित लर्नर हमारे हैं ओडिया, समस्त को आज संबलपुरी दिनों पाई समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन। एंड जस्ट आई मैम यू हैव गॉन ऑन म्यूट, आप म्यूट पे चले गए। हाँ, थैंक यू
प्रोफेसर रेखा सेन शर्मा, आपने जो इतना अच्छे से सेशन लिया, द वे यू प्रेजेंटेड, इट इज वेरी वेरी वंडरफुल रियली, और हमारे लर्नर के लिए भी इट विल हेल्पफुल। और आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द रीजनल डायरेक्टर्स एंड ऑल द एकेडमिक्स फ्रॉम ऑल द रीजनल सेंटर, दोज हु आर प्रेजेंट हियर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इट इज आवर टीम वर्क from RSD and school and all the across the country, we will definitely develop this program with the best program. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Moni. I sorry to say, thank you, Dr. Moni. She is doing very hard for RSD and for the regional center. Thank you, Dr. Moni, sir. Thank you. Thank you, ma'am. So I will just do the formality of concluding the program because Thanksgiving has been done. But definitely, all the participants in this meeting, including the students, deserve special mention because, first of all, I would like to extend the thanks to Dr. Manorma Singh, the Director of the Regional Services Division, because she has been proactive in supporting such programs, such contact programs with students. And we are also thankful to Rekha Sharma Sen, because she came to the regional services division with the idea to have a program, realizing that the program has such a huge enrollment, more than 1 lakh students for January 2025. So thanks to you, madam, and thanks to our colleagues from the regional centers, from Regional Center Bhubaneswar, Dr. Bimal Nanda, Dr. Santosh Panigrahi, from Regional Center Anugul, Dr. Abhilash Nayak sir, and from Regional Center of Koraput, Dr. Latika Mishra and Dr. Madhav. And also from the regional center of Jaipur, Dr. Mamta Bhatia madam, Dr. Indu Ravi, and regional center Jodhpur, Dr. Sachin. So I extend thanks to all of you for coming up with your own innovative ideas on academic support to the students. And I also take the opportunity to thank the Press Information Unit, Rajesh ji, for coordinating this program and making it live on the Facebook channel of IGNOU. And also, I would like to thank the Center for Online Education. Mithun ji is coordinating from COE to make this program available on the YouTube channel of IGNOU. So, thanks to one and all, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी, तो आप जब भी आपको कोई दुविधा हो, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।